त्यांनी जास्ती चमकते. नाही नाही, असं समोर बसलं ना की चमकते खूप. असं बसलं ना अर्धा चेहरा अंधारात दिसते. नाही करा मग काय जाऊ दे, चेहरा कोण बघतो, पीपीटी बघतो. Yeah, good evening, everybody. We'll be starting the webinar in the next 2 minutes. सर शेयर स्क्रीन ऑप्शन करू तब तक? Yes, sir. कर सकते हैं, no problems. Sir, actually, attendees would be joining in the next, it will take another 1 or 2 minutes. So I'm going to start the webinar exactly at 9:05. ओके सर.
Okay, good evening, everyone. So we'll be starting the webinar now. Welcome to the Gyan Vardhini session number 29. I'm going to adjust my screen. Okay, welcome everybody. I am Anand from ClinSav team, and I thank each one of you to join us today as we embark on yet another enlightening journey of wisdom and knowledge enhancement. So before we begin, I would like to share a brief overview of the amazing ClinSav app that we have been developing over the last 6+ years. ClinSav means Clinic Savvy, and it is the only mobile-based clinic management app in India that allows you to manage your clinical practice in a full or 100% offline mode. It has a very simple design. ClinSav helps doctors easily manage patients, appointments, case papers, full prescriptions, bills, fees, issue of pre-filled letters, manage finances, doing follow-ups with patients for any outstanding dues. ClinSav helps send automated appointment reminders one day in advance to your patients through SMS and WhatsApp. ClinSav users can simply swipe and send custom WhatsApp messages to their patients as well. Now we shall start with our today's webinar. Our today's webinar topic is clinical aspects of Netra Yoga in practice. Our distinguished speaker for today is Dr. Sandeep Jadhav. Dr. Sandeep Jadhav is a passionate Ayurvedacharya with specialization in Shalakya Netra Chikitsa with over 14+ years of experience. Dr. Sandeep has a vision to establish Ayurveda as a credible, scientific, and long-term solution for preventing vision loss in chronic eye diseases. He is a founder and chief consultant at Rishi Pranit Ayurved Eye Clinic at Satara since 2012. Dr. Sandeep's clinical expertise involves treating cases of mucormycosis, diabetic retinopathy management, glaucoma care, keratoconus and myopia management, dry eye syndrome, and preventive and regenerative Ayurvedic eye care. Dr. Sandeep Jadhav is known for combining classical Ayurvedic wisdom with modern clinical understanding, focusing on Panchakarma-based eye therapies, internal Ayurvedic medications, long-term disease stabilization protocols, patient education, and lifestyle correction. Dr. Sandeep has received various awards in his tenure. He is a recipient of Ayurveda Ratna Award 2023 by Vaishvik Gurukul Parivar and honored as Sakar Health Idol 2022. Dr. Sandeep has successfully treated and helped preserve vision in 40+ mucormycosis affected eye patients during the COVID pandemic and actively organizes eye health awareness camps in association with NIE Sakar Media Group. He has given various lectures and done workshops of Kriya Kalp at national seminars. Dr. Sandeep is a regular speaker at health awareness programs with Sakar Media, conducts educational sessions for patients and Ayurveda students, and he's an active digital educator through WhatsApp and Facebook platforms. Dr. Sandeep, we are honored to have you with us today to conduct this webinar. Let us all welcome Dr. Sandeep Jadhav to today's session. Dear sir, you can start with your session now. Thank you. Am I audible? Yes, sir. Very clear, sir. I'm sharing the screen. Yes, sir, I can see the screen. Okay. तो सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है कि आपने नेत्र रोगों के बारे में जानने में रुचि रखी। मेरी आवाज इतनी काफी है या फिर और थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा? नहीं सर, एकदम परफेक्ट है सर। परफेक्ट, ओके। यस सर। तो आज मैं प्रयत्न करूंगा कि आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स को और स्टूडेंट्स को आज तक जो मैंने मेरे गुरुओं से सीखा है कि नेत्र रोग में आयुर्वेद किस तरह हम इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको जितना मेरा बेस्ट है उससे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले गुरुओं को हम नमन करते हैं
गुरुवर्य वैद्य प्रता जोशी सर, जिन्होंने मुझे सिखाया, और गुरुवर्य वैद्य राज दातार शास्त्री जी, जिनसे मैंने सीखा। और हम एक कोर्स चलाते हैं जिसका नाम है आयुर स्कूल ऑफ पंचम वेद, जो डॉक्टर अनिरुद्ध काळे सर के यहाँ से चलता है। तो ये भी एक मेरे गुरु हैं। तो पहले गुरुओं को नमन करके मैं ये शुरू करता हूँ। गाडगिल सर की अभी जयंती है, तो गाडगिल सर को भी एक अभिवादन। तो नेत्र रोग में पहली बात ये हमें जाननी जरूरी है कि नेत्र रोग में आयुर्वेद प्रैक्टिस करने के लिए शालाक्य के जो वैद्य है, शालाक्य के जो स्टूडेंट्स है, वो ज्यादा क्यों नहीं इन्वॉल्व होते। एक तो ये है कि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लासिकल टेक्स्ट, जो सभी ब्रांचेस में कॉमन है। लैक ऑफ आयुर्वेद प्रैक्टिकल एक्सपोजर, क्योंकि आंखों के बारे में प्रैक्टिकली कहीं पे देखा नहीं रहता है। उसके बाद अदर हैंड पे क्या है कि एलोपैथी है टोटली एस्टेब्लिश है, उनके एसओपीज रेडी है, उनके लिए सिस्टम रेडी है, तो वो स्टूडेंट ज्यादा देखते हैं और वो इजीली उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि हमें वो अलाउड है। तो उसी के लिए मैंने वो नीचे अल्पसत्व पॉइंट डाला है। मतलब क्या है, बहुत सारे लोग हैं कि इतना ज्यादा टाइम या फिर उतने पेशेंस नहीं रहते कि हम आयुर्वेद से भी कुछ कर सके, चलो एक ड्रॉप डाल के काम हो रहा है तो क्वाथ की धारा क्यों करें, ऐसे कुछ सवाल रहते हैं। दूसरा, जो शालाक्य के स्टूडेंट है उनमें सोशल पीयर प्रेशर कि पास आउट होने के बाद जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस सेट करनी है। और मॉडर्न का जो मैंने कहा कि एडवांस टेक्निक्स है, इंस्ट्रूमेंट्स है, और हमारे पास सिर्फ क्लासिकल टेक्स्ट है। तो ये हमारी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है कि आयुर्वेद में जो भी लिखा हुआ है उससे जितना ज्यादा हम समझ सके और उसको जितना एक्सप्लोर कर सके, क्योंकि अगर आयुर्वेद के स्टूडेंट्स नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और दूसरा प्रश्न ये आता है कि जरूरत क्या है। अगर इतना सब कुछ मॉडर्न साइंस ने एस्टेब्लिश कर लिया है तो ये हमारे स्कोप है, जो मैंने नीड करके लिखा है। तो वो पहले जो है हमारा स्कोप है, क्योंकि प्रिवेंटिंग ब्लाइंडनेस, मॉडर्न साइंस में बहुत ज्यादा बात इसकी होती है कि ब्लाइंडनेस प्रिवेंट करना है। लेकिन जैसे हम पीपीटी में आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रिवेंटिंग ब्लाइंडनेस के नाम पर मॉडर्न साइंस में ज्यादा कुछ नहीं है। हमारे पास वो बहुत ज्यादा स्कोप है कि हम ब्लाइंडनेस प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा, ये आयुर्वेद हमारा शास्त्र है। तीसरा, हम उसकी ही डिग्री ले रहे हैं तो उसके प्रति हम लॉयल होने चाहिए। और तीसरा है कि आप किसी का स्वास्थ्य सुधार सके या न सके, खुद का तो स्वास्थ्य आप सुधार सकते हैं आयुर्वेद से। इसलिए आयुर्वेद करना जरूरी है क्या, तो बिल्कुल जरूरी है। तो हम अपने विषय की तरफ चलते हैं। नेत्र रोग की प्रैक्टिस करते वक्त या फिर कोई भी आयुर्वेद प्रैक्टिस करते वक्त पहली बात यह है कि हमें निदान अच्छी तरह आना चाहिए। लेकिन नेत्र में अलग क्या है, तो नेत्र में अलग है कि पेशेंट्स कम विद द एलोपैथी डायग्नोसिस। क्योंकि पेशेंट सीधा आपके पास रिपोर्ट लेके आता है और ये देखिए मुझे ये हुआ है। पेशेंट को कुछ भी नहीं पता रहता डायबिटीज के बारे में या फिर हाइपरटेंशन के बारे में। लोगों को आजकल कुछ तो पता है कि मुझे स्किन को ऐसा हुआ है, आर्थराइटिस हुआ है, लेकिन आंखों के बारे में सिर्फ मुझे कम दिख रहा है, इसके अलावा पेशेंट को कुछ भी नहीं पता रहता। तो हमारी जिम्मेदारी पहले ये बनती है कि पेशेंट जब एलोपैथी का डायग्नोसिस लेके आए तो उसको एलोपैथी डायग्नोसिस से उठाकर हमें पहले आयुर्वेदीय निदान पे शिफ्ट करना पड़ता है। जब तक हम आयुर्वेदीय निदान पे शिफ्ट नहीं करते तब तक हमें उसका एक्चुअल ट्रीटमेंट पता नहीं चलता। और वो आयुर्वेदीय निदान करने के लिए हमें उसको पहले दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न से परीक्षा उसकी करनी पड़ती है। मॉडर्न साइंस में क्या होता है, पेशेंट जाके सीधा चेयर पे बैठते हैं और डॉक्टर जो है वो स्लिट लैम्प से या फिर अदर इंस्ट्रूमेंट से उनकी आंख देखते हैं और आंख देखने के बाद वो डायरेक्टली बताते हैं कि आपको ये हुआ है, आपके पिछले पर्दे में रेटिना में ब्लीडिंग हुआ है या फिर आपका प्रेशर बढ़ा हुआ है, ऐसा आपको बता देते हैं और ये आपको करना पड़ेगा। पेशेंट के हाथ में कुछ नहीं रहता। और हमारे यहाँ पे जब पेशेंट आता है तो सिर्फ इतना करके नहीं चलता, ये करना पड़ता है प्लस
सार्वदेहिक हमें हिस्ट्री लेनी पड़ती है, पेशेंट को पूछना पड़ता है। अगर हमें आयुर्वेद निदान करना है तो पेशेंट को पूछना पड़ता है कि आपको किस तरह से दिख रहा है, क्या दिख रहा है। तो आयुर्वेदीय निदान इज की फैक्टर, जो हमारे सुश्रुत संहिता में या फिर वाग्भट जी ने लिखा है दृष्टिगत रोगों में, या फिर तिमिर रोग विज्ञानी अध्याय में, वो जो हमारे निदान के क्राइटेरिया है वो हमें ठीक से पढ़ने चाहिए, वो हमें ठीक से देखने चाहिए, और उसके ऊपर से विचार करके हमें निदान करना है कि पेशेंट डायबिटिक रेटिनोपैथी ऐसा डायग्नोस करके आया है, लेकिन आयुर्वेद के स्तर पे इसका निदान क्या है। ये तिमिर है तो कौन सा तिमिर है, अगर ये तिमिर हुआ है तो इसकी शुरुआत कहाँ से है। इस तरह से एक डिफरेंस क्या है कि मॉडर्न साइंस में ये टोटली ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियाज रहते हैं, यानी आपके हाथ में सीधा रिपोर्ट्स, फोटोज, स्कैन दिए जाते हैं कि आपकी विजन इतनी है, आपके फंडस फोटोग्राफ निकाल के देखो यहाँ पे ब्लीडिंग हुआ है, स्कैन निकाल के ओसीटी कहते हैं हम, ऑप्टिक कोहेरेंस टोमोग्राफी करके यहाँ पे एडिमा है या फिर यहाँ पे डिटैचमेंट है। ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है, पेशेंट को यहाँ पे बात करने की कोई जरूरत ही नहीं रहती। लेकिन हमारे ग्रंथों से अगर हमें निदान करना है तो ग्रंथों में टोटली सब्जेक्टिव क्राइटेरियाज है, यानी तृतीय पटलगत तिमिर में ऊर्ध्वम पश्यति न अधस्तात्, या फिर द्विधा स्थिते दोषे द्विविधे न पश्यति, या फिर मक्षिका मशकान केश जालकानी पश्यति। ऐसे जो क्राइटेरिया दिए हैं ये हमें पहले ठीक से पढ़ने चाहिए। आज की पीपीटी में उसमें उसमें जो भी है हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे। तो पहली बात यह है कि सिर्फ नेत्र रोग ऐसा कह के नहीं चलना है, हमें पहले नेत्र रोग को, मॉडर्न साइंस का जो निदान है उसको हमें नेत्र रोग में डिकोड करना है, और उसके बाद हमें उस पर विचार करना है, तभी हम ट्रीटमेंट के बारे में सोच सकते हैं। और जो आखिरी पॉइंट इस पीपीटी में आपको दिख रहा है, इस स्लाइड पे आपको दिख रहा है, वो है औपद्रविकम अध्यायम। सुश्रुत उत्तर स्थान का पहला जो अध्याय है, जहां पे नेत्र का शारीर, नेत्र की क्रिया, नेत्र की सामान्य संप्राप्ति, नेत्र के कितने विकार है, ऐसा सब वर्णन दिया है, उस अध्याय का नाम है औपद्रविकम अध्याय। वहां पे टीका में डल्लन लिखते हैं कि मैं यहां से आगे जो भी चीजें आपको बताऊंगा वो सब उपद्रव स्वरूप है, ऐसा आप समझिए। यानी नेत्र के जो रोग है वो सब उपद्रव स्वरूप निर्माण होते हैं। मतलब हमें ये समझना चाहिए कि ये जब उत्तर तंत्र पे हम सीधा जा रहे हैं तो उसके पहले हमें पूर्वार्ध ठीक से आना चाहिए, मतलब सूत्र स्थान और निदान स्थान पे हमारी पकड़ रहनी चाहिए। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि जिस किसी को भी शालाक्य के डिसीजेस ट्रीट करने हैं, ऐसा उसे लगता है कि मुझे शालाक्य की प्रैक्टिस करनी है, तो उसको पहले काय चिकित्सा समझनी चाहिए। अगर एक काय चिकित्सा का व्यक्ति है, अगर उसको शालाक्य के बेसिक्स नहीं समझे तो चलता है, लेकिन शालाक्य के व्यक्ति को काय चिकित्सा के बेसिक आए बिना शालाक्य की ट्रीटमेंट करनी पॉसिबल नहीं होती। तो हमें पहले समझना है कि जैसे सामान्य संप्राप्ति आपको पता है कि सीरा अनुसारी भी दोषे विगुणे ऊर्ध्वम आगते, तो विगुण हुए दोष सीरा का अनुसरण करते हुए ऊर्ध्व भाग में जब जाते हैं, ये ऊर्ध्व जब जत्रुगत रोग निर्माण करते हैं, जायन्ते नेत्र भागेषु रोगा परम दारुणा, नेत्र भाग में जाके ये परम दारुण रोग निर्माण करते हैं। मतलब ये विगुणता जो है वो अधः भाग से, मतलब कोष्ठ से ही आई हुई है। तो वहां पे हमें जो डिटेल हिस्ट्री है, पेशेंट के हेतु है, उसका दर्शन और स्पर्शन चिकित्सा है, वो करने के बाद ही हम निर्णय ले सकते हैं कि आंखों के हमें ट्रीटमेंट क्या करनी है। ठीक है, तो निदान इज इंपॉर्टेंट। अगर आपने निदान किस बेस पे करना है ये समझ लिया तो आंखों के डिसीज ट्रीट करने में आसानी होती है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ सुश्रुत जी ने 18 अध्याय दिए हैं, और 18 अध्याय के कुल मिला के ज्यादा से ज्यादा 30 या 35 कुछ पेजेस रहेंगे। पूरा शालाक्य, पूरा नेत्र रोग 35 पेजेस, मतलब ये बहुत ही कम है ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन अगर आप कंपेयर करें मॉडर्न साइंस के बुक्स से, तो एक क्रैकमर करके बुक है जिसमें सिर्फ कॉर्निया का डिसीजेस का वर्णन है, कॉर्नियल डिसीज का बुक है, उसका पेजेस है लगभग 6500। 6500 की बुक सिर्फ ये कृष्ण मंडल जो आपका दिख रहा है उसमें सिर्फ कॉर्निया है उसकी है। अगर हम कंपेयर करें कि पूरा नेत्र रोग 35 पेजेस का और क्रैकमर जो है वो इतने पेजेस की, ये कैसे हो सकता है। तो
हमें ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ती है एक एक सूत्र को समझने की, एक एक सूत्र को अच्छे से एक्सप्लोर करने की, और ये सूत्र के जो बैकग्राउंड में काम कर रहा है, सूत्र स्थान और निदान स्थान, उनको एक्सप्लोर करने की। तभी हम ये उपद्रव स्वरूप निर्माण हुए नेत्र व्याधियों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा जो भी शालाक्य के लोग नहीं है उनके लिए एक रिवीजन, इसलिए मैं ऐसा ये दो चित्र आपको दिखा रहा हूं। एक में मॉडर्न में एनाटॉमी लिखी हुई है, एक में आयुर्वेद एनाटॉमी लिखी हुई है। तो पंच षट षडेवेच, पांच, छह और छह, पांच मंडल है जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। वर्त्म मंडल, पक्ष्म मंडल, वर्त्म मंडल, शुक्ल मंडल, कृष्ण मंडल और दृष्टि मंडल। ऐसा आयुर्वेद कहता है कि आयुर्वेद के ये पांच मंडल है। मंडल मतलब गोल, जो भी आपको बाहर से गोल चीजें दिख रही है वो। और ये जो मंडल है, ये मंडल एक दूसरे को जहां पे जुड़ जाते हैं वहां पे संधि हुआ करते हैं। तो पक्ष्म और वर्त्म की संधि, वर्त्म और शुक्ल की संधि, शुक्ल और कृष्ण की संधि, कृष्ण और दृष्टि की संधि, और ये दो वर्त इंटरनल और एक्सटर्नल जो संधि है वो कनिनिक और अपांग संधि, इस तरह से छह संधि है और छह पटल है। ये पटल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन हमें यह समझना है कि मॉडर्न साइंस में जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये कॉर्निया है, तो हमारे यहाँ पे कृष्ण मंडल जब हम कहेंगे तो सिर्फ कॉर्निया नहीं कहेंगे, आइरिस, कृष्ण मंडल और आइरिस के बीच में जो एक्वियस ह्यूमर है वो, ये सब कृष्ण मंडल के व्याधियों में आ जाता है। जहां पे हम श्वेत मंडल कह रहे हैं, श्वेत मंडल मतलब ये व्हाइट पार्ट, ये व्हाइट पार्ट को शुक्ल मंडल कह रहे हैं। लेकिन मॉडर्न साइंस के हिसाब से इसमें कंजेक्टाइवा है, इपिस्क्लेरा है, टिनस कैप्सूल है और फिर स्क्लेरा है। तो इसमें किसी पे भी व्याधि रहेंगे तो हमारे हिसाब से ये शुक्ल मंडल के व्याधि है। मॉडर्न साइंस के हिसाब से ये स्क्लेराइटिस हो सकता है, कंजेक्टिविटिस हो सकता है, इपिस्क्लेराइटिस हो सकता है, या फिर और कुछ जैसे पिंगिक्यूला हो सकता है। लेकिन हमें हमारे निदान पे अगर रहना है तो पहले हमारी भाषा में डिकोड करना चाहिए। दूसरा एक बेसिक चीज के लिए थोड़ा इंट्रोडक्शन के लिए बता देता हूं कि पांचभौतिकत्व कहा गया है कि आंखों में जो भी मांसल भाग है वो पृथ्वी महाभूत प्रधान है। तो यहाँ पे आप प्रेजेंटेशन में ये देख सकते हैं स्लाइड में कि आईलिड्स, रेक्टस मसल्स, ये सब मांसल भाग है आंखों में जो हम पृथ्वी महाभूत ऐसा पकड़ के चलेंगे। फिर रक्त भाग जो भी है, जो भी लाल भाग दिख रहा है वो तेज महाभूत प्रधान है। अगर हम फंडोस्कोप से दृष्टिमंडल में देखेंगे तो आपको रेटिना पूरा रेड यानी पिंक ऑरेंज जैसा दिखता है। फिर पाल्पेब्रल कंजेक्टिवा, अगर आपने आईलिड इवर्ट करके देखा तो ये नीचे पूरा रक्त भाग दिखता है। ये सब तेज महाभूत। कृष्ण भाग जो है वो वायु महाभूत प्रधान, उसमें कॉर्निया आ गया, आइरिस आ गया, एंटीरियर चेंबर आ गया, स्लेम्स कैनाल आ गया, एक्वेस ह्यूमर आ गया। शुक्ल मंडल जो है वो आप महाभूत प्रधान है जिसमें स्क्लेरा, बल्बर कंजेक्टाइवा, बल्बर कंजेक्टाइवा मतलब जो स्क्लेरा पे कंजेक्टाइवा है वो, और पाल्पेब्रल कंजेक्टाइवा मतलब जो लीड को अंदर से लगा हुआ है वो। तो देखिए यहाँ पे अगर हम मॉडर्न साइंस के हिसाब से कंजेक्टाइवा एक ही रहेगा, लेकिन हमारे यहाँ पे अगर वो पाल्पेब्रल कंजेक्टाइवा है तो यहाँ पे हमें तेज महाभूत का ज्यादा विचार करना है। लेकिन अगर बल्बर कंजेक्टाइवा का विचार कर रहे हैं तो हमें आप महाभूत का ज्यादा विचार करना है। फिर अश्रु मार्ग जो है वो आकाश महाभूत प्रधान। तो अश्रु मार्ग मतलब क्राउस ग्लैंड, यानी जहां से टीयर्स निर्माण होते हैं, फिर पूरी आंखों में वो घूमते हैं। और फिर जो पंक्टम रहता है नेजल के, नेजल साइड में आंखों के, वहां से वो नेजो लैक्रिमल डक्ट से नीचे चला जाता है नाक में। तो ये पूरा जो रूट है वो आकाश महाभूत प्रधान है। तो यहाँ की जब व्याधियां रहेंगी तब आप आकाश महाभूत का विचार करना आपको करना चाहिए। तो ये क्या रहेगा, सिर्फ 18 अध्याय में समावेश नहीं रहेगा, हमें और भी थोड़ा सा उसकी छटाई मिल जाती है, थोड़ा सा विचार करने के लिए स्पेस मिल जाती है। इसलिए ये थोड़ा सा मैंने शुरुआत के लिए बताया। अभी थोड़ा सा संहिता पे आते हैं। संहिता में नेत्र रोगों का जो वर्णन है ये संधिगत, शुक्लगत, कृष्णगत, पक्ष्मगत, सर्वगत और दृष्टिगत इस तरह से किया है सुश्रुत जी ने। लेकिन ये सिर्फ संहिता लिखने के लिए है। संहिता जो है ना, संहिता को हम कहते हैं स्क्रिप्ट्स। ओके, जैसे ये नाटक कहते हैं ना, तो मराठी में कहते हैं कि नाटकाची संहिता है। एक स्टोरी रहती है हर एक मूवी की। हम एक 2 मिनट में विषय बता देते हैं कि चलो ये मूवी का ऐसा ऐसा विषय है। लेकिन अगर हम स्क्रिप्ट लेंगे तो उसमें डायलॉग्स आएंगे, सीन्स आएंगे, वहां पे उसका प्लेटफॉर्म आएगा, किस प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं, ऐसा सब कुछ आ जाएगा।
तो संहिता जो है उसमें डिस्क्रिप्शंस पूरी तरह रहता है, इसलिए वहां पे उन्हें एक कुछ पकड़ के चलना रहता है कि हमें आपको कुछ बताना है तो क्लासिफिकेशन करना है। लेकिन अगर हम क्लिनिकली देखेंगे तो क्लिनिकली जहां पे हमें मेन चीज आती है कि उसको ट्रीटमेंट करना है, तो सुश्रुत जी ने क्या किया है देखो, निदान के जो अध्याय है वो सब रचना के हिसाब से दिए हैं, लेकिन चिकित्सा के जो अध्याय है ना, अगर सुश्रुत संहिता आप उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे जैसे वाग्भट जी ने यहाँ पे संदिग्ध रोग प्रतिषेध अध्याय, शुक्लगत रोग प्रतिषेध अध्याय ऐसे अध्याय दिए हैं, लेकिन सुश्रुत जी ने ऐसे अध्याय नहीं दिए। सुश्रुत जी ने जो अध्याय दिए हैं वो है वाताभिषंद प्रतिषेध अध्याय, पित्ताभिषंद प्रतिषेध अध्याय, कफाभिषंद प्रतिषेध अध्याय, रक्ताभिषंद प्रतिषेध अध्याय, और वो चारों अध्याय में ही संदिग्ध रोग, शुक्लगत रोग और कृष्णगत रोगों के मेडिसिन से ट्रीट किए जाने वाले रोगों का वर्णन किया हुआ है। यानी ट्रीटमेंट करते वक्त उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दोषों का ही विचार किया है और बाकी कुछ विचार नहीं किया कि ये संदिग्ध है या फिर शुक्लगत है या कृष्णगत है। दूसरा एक विचार किया गया है कि ये शस्त्र साध्य है या अशस्त्रकृत है। तो आगे के जो अध्याय है रक्ताभिसंध अध्याय के बाद में वो छेद्य अध्याय, छेद्य शस्त्र कर्म का अध्याय, लेख्य वेद्य ऐसे शस्त्र कर्म के अध्याय, और थोड़ा सा हम वहां पे ऑब्जर्व करेंगे तो इन सब में दृष्टि प्रतिषेध अध्याय ही अलग अध्याय दिया हुआ है। देखिए संदिग्ध से लेकर सर्वगत ये सब अध्यायों के जो भी रोग है वो वातज, पित्तज, कफज और छेद्य भेद्य लेख्य अध्याय में वर्णन किए हैं, लेकिन दृष्टिगत रोगों के लिए सुश्रुत जी ने अलग अध्याय दिया हुआ है। उसकी एक मीमांसा यहाँ पे डल्लन जी करते हैं कि सर्वे नयनामयास्तु प्रायः अभिषंद निमित्त मूला, जो हमें पता है कि सब जो भी नेत्र रोग है अभिषंद निमित्त से होते हैं, लेकिन डल्लन कहते हैं दृष्टिगता नाम तिमिर आदि नाम अभिषंदम निमित्तत्वम न स्यादिति बोधयति। यानी तिमिर जो है यानी दृष्टिगत जो रोग है उनके लिए अभिषंद का होना कंपलसरी नहीं है, यानी अभिषंद होने के बाद ही वो होंगे ऐसा कंपलसरी नहीं है। अभिषंद के बाद हो सकते हैं और बिना अभिषंद के भी हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने रचना ही ऐसी की है कि पहले दोषों के अनुसार अभिषंद की ही ट्रीटमेंट दे दी, फिर शल्य क्रिया बताए और दृष्टि प्रतिषेध अध्याय एक अलग अध्याय बताया। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है संध्यादि गता नाम च संध कारणत्व। संधि आदि संधिगत आदि जो रोग है संधिगत वर्तमगत उनमें संध कारण कंपलसरी है, इसलिए हमने अभिषंद में वो डाले हैं, लेकिन दृष्टि के लिए आपको ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हमेशा अभिषंद ही होना चाहिए। और चिकित्सा सूत्र के बारे में अगर हम कहेंगे तो ये शालक्य का एक्चुअल सूत्र है कि संक्षिप्तः क्रिया योगो निदान परिवर्जनम। उसकी टीका में वो कहते हैं संशमनम संशोधन आदि नाम अयम एवं संयम सम्यक योगा। यानी देखिए और अलग कुछ नहीं करना है, जो आप अदर कोई भी डिसीज ट्रीट करने के लिए करते हैं, संशमन और संशोधन पांचों प्रकार के शोधन करने हैं और 6 प्रकार के शमन करने हैं। जो हमें पता है पंचकर्म जो 5 प्रकार के शोधन है, और स्नेहन, रुक्षण, लंघन, ब्रूहन और स्नेहन, स्तंभ, स्वेदन और स्तंभन ये 6 प्रकार के शमन है। वही चीजें उनका ही सम्यक योग ही बेसिक चिकित्सा सूत्र है। और आपको करना क्या है, वात आदि नाम प्रतिघाता क्रिया योग प्रोक्ता। तो ये मैंने पहले क्या आपको इस किस लिए मैंने आपको ये सामान्य संप्रप्ति सामान्य चीजें बता दी, क्योंकि आंखों के बारे में बहुत लोगों के प्रश्न रहते हैं कि कुछ अलग करना है, कुछ अलग तरह से देखना है। वहीं पे वो मुंह मोड़ लेते हैं कि ग्रंथों में कुछ लिखा ही नहीं है, सिर्फ 18 ही अध्याय है, और वहां पे जहां जो जितना भी लिखा है तो वो इनफ नहीं लगता। वैसे मैं आगे आगे की स्लाइड में बात पहले बताऊंगा फिर आगे बात करूंगा। जैसे अगर आपने चिकित्सा के अध्याय देखे ना, तो वहां पे स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्तमोक्षण सबका उल्लेख है। एक्स्ट्रा क्या है तो परिषेक, आश्वतन, पिंडी, बिडालक, तर्पण, पुटपाक, अंजन, प्रलेप ये सब दिया हुआ है, लेकिन आपको अभ्यंतर औषधि ढूंढ के भी नहीं मिलेगी। 18 के 18 अध्याय में अभ्यंतर औषधि नाम मात्र स्वरूप है। दृष्टि प्रतिषेध अध्याय इतने रेटिना के बड़े बड़े डिसऑर्डर्स को हम वहां पे वर्गीकरण कर रहे हैं, दिखना बंद होना ये बेसिक उसका की पॉइंट है कि तिमिर
इतने रेटिनल डिसऑर्डर को हम सीवियर कह रहे हैं, कष्ट साध्य कह रहे हैं। पहले ही अध्याय में सुश्रुत जी कहते हैं कि परम दारुण ऐसे कष्ट साध्य तिमिर रोग ये पटल में होते हैं, और वहां पे आप अभ्यंतर औषधि क्यों नहीं दे रहे हैं? सिर्फ आंखों में डाल के होगा क्या? नहीं होगा। वहां पे एक ही औषधि है त्रिफला, कि घी के साथ त्रिफला खाओ, मधु के साथ त्रिफला खाओ, या फिर तेल के साथ त्रिफला खाओ। तो ऐसी बात नहीं है। इसलिए मैंने पहले स्लाइड इसीलिए बताए हैं कि आपको सूत्र स्थान में जो भी दोषों के बारे में लिखा हुआ है वो सब मालूम होना चाहिए। वो षटक्रिया काल पता होना चाहिए, प्रकोप प्रशम पता होना चाहिए, ज्वर से लेकर वात शोणित के निदान और उनके छोटे छोटे लक्षण पता होने चाहिए। तभी आप ये आंखों के 18 अध्याय ठीक से समझ सकते हैं, और उनकी चिकित्सा में कौन से द्रव्य हम इस्तेमाल कर सकते हैं उनका हम डिसीजन प्रॉपरली ले सकते हैं। मुझसे जितना होगा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। हमें समय की मर्यादा है, और ऐसा है कि हम एक डिसीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरी ब्रांच के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए ये थोड़ा ट्रेलर टाइप या फिर मैराथन टाइप लेक्चर रहेगा। मैंने थोड़ा डिजाइन किया है कि एक एकाध एकाध डिसीज समझाओ। जैसे वाग्भट जी ने 2-3 आवरण के श्लोक दिए और बाकी के आवरण आप इससे समझ लो, ऐसा लिखा हुआ है। तो उसी तरह से मैं प्रयत्न करूंगा कि 2-3 एक मेजोरिटी डिसीज आपको समझाऊं, उसके बारे में बताऊं, और फिर उससे आप थोड़ा सोच के आगे नेत्र चिकित्सा कर सके। क्योंकि सभी कुछ बताना लेक्चर में पॉसिबल नहीं, बताना भी पॉसिबल है, लेकिन वो इतना समझना या फिर ग्रास्प करना सभी एक टाइम पे नहीं होता। तो जितना हमें आसानी से हो सके, और आप टेक होम मैसेज एक कल से जब कोई आंखों का पेशेंट आए तो क्या विचार करना है ये भी आप लेके जा सके तो भी बहुत अच्छी बात रहेगी, एक घंटे के लेक्चर या फिर 1.5 घंटे के लेक्चर की। तो इसलिए हम पहला थोड़ा सा एक रेगुलर डिसीज लेते हैं, रिफ्रैक्टिव एरर, मतलब चश्मा, जो हमें पता है कि कॉमनली अगर हम किसका विचार कर सकते हैं सिंपल से सिंपल, तो रिफ्रैक्टिव एरर। तो रिफ्रैक्टिव एरर्स यानी सबको आपको पता है चश्मा है, फिर भी शालाक्य के स्टूडेंट जो नहीं है उनके लिए मैं बता देता हूँ। जो भी माइनस नंबर रहते हैं उनको मायोपिया कहते हैं। उसमें क्या रहता है, जो आंखों में रेज जाते हैं वो रेटिना के पहले ही फोकस हो जाते हैं। फिर दूसरा रहता है वो है हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें प्लस नंबर रहता है, जिसमें आंखों में जो रेज आते हैं वो रेटिना के पीछे फोकस होते हैं। इन दोनों में भी हमें दूर का ठीक से नहीं दिखता, ब्लर दिखता है। तो समझने के लिए हम थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन इतना समझ लेंगे। और हमारे पास अगर पेशेंट आ गए कि मुझे चश्मा लगा है, तो हमें क्या करना है? ये मायोपिया थोड़ा सा बाजू में रखना है, हाइपरमेट्रोपिया थोड़ा सा बाजू में रखना है। हमें पहले देखना है कि उसका एज फैक्टर क्या है ट्रीटमेंट करने के हिसाब से। तो देखिए, हमें क्या है कि उसके आंखों में जो भी बदल हुए हैं वो किस हेतुओं से हुए हैं, उन्हें हमें ट्रीट करना रहता है। बदल क्या हुए हैं देखिए, जैसे मैंने कहा कि मायोपिया मतलब माइनस नंबर जो हमें स्कूल एज में सबको दिखता है, तो जो रेटिना पे अच्छी तरह से फोकस होने चाहिए रेज, वो रेटिना के पहले फोकस हो रहे हैं। तो पहले फोकस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आईबॉल जो है उसकी लेंथ थोड़ी पीछे की तरफ बढ़ी हुई रहती है, वो थोड़ा खींचा हुआ रहता है पीछे की तरफ। मॉडर्न साइंस यहां से शुरू होता है कि एक्सेल लेंथ बढ़ने की वजह से जब रेटिना पे फोकस होने वाले रेज रेटिना के पहले ही फोकस होते हैं, तो हम क्या करते हैं, कॉन्केव लेंस लगा के, नेगेटिव लेंस लगा के, नेगेटिव नंबर की रेटिना पे फोकस कर देते हैं, और वहां पे उनकी कहानी खत्म होती है। लेकिन हमारी कहानी उससे पहले बहुत शुरू होती है कि ये आंखों की लेंथ बढ़ने में कारण क्या है। तो ये आंखों की लेंथ बढ़ने में जो कारण है वो 1 से 15 साल में थोड़े से अलग है, 15 से 40 साल के उम्र के लोगों में अलग है, और 40 ऑनवर्ड्स अलग है। बढ़ने में या फिर कम होने में, दोनों में भी जो हेतु है वो आपको यहाँ पे थोड़े दिख रहे हैं, आपको थोड़ा सा अंदाज आया रहेगा कि छोटे बच्चों में जो है वो लाइफस्टाइल फैक्टर्स, उनका खाना पीना, उनके बहुत ज्यादा, यानी मराठी में क्या, लाड ज्यादा रहते हैं, बहुत ज्यादा मीठा खाना, मेरे बच्चे का वजन बढ़ना चाहिए, इसको बार 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 खाने देना। प्रता जोशी सर, आदरणीय गुरु जी, नाना जी जो है थे, उनको मैंने प्रश्न पूछा था कि ऐसा, चलो बड़े बच्चों में मोबाइल ज्यादा देखने से या फिर काम ज्यादा करने से, पढ़ने से ज्यादा ज्यादा पढ़ने से नंबर लगते हैं, लेकिन छोटे बच्चे कहाँ मोबाइल देखते हैं? यानी ये 15 साल पहले की बात है, 15-20 साल पहले, कि तब मोबाइल वगैरह छोटे बच्चों को ज्यादा देखने का सवाल ही नहीं आता, तब उतने मोबाइल थे नहीं। तो वो लोग कुछ ज्यादा पढ़ते नहीं है, तो फिर उनको क्यों चश्मा लगता है? तो नाना जी ने एक ही शब्द में कहा था कि लाड़ प्यार। तो ज्यादा से ज्यादा बार बार दूध पिलाना, सुबह उठते खा रहे हैं, नहाने से पहले खा रहे हैं, फिर बार बार खिला रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, बाहर का ज्यादा खा रहे हैं, जो हम रेगुलर
कोई भी प्रतिशय का पेशेंट आने के बाद आप कृमियों की पेशेंट आने के बाद जो भी हिस्ट्री लेते हैं, वही हिस्ट्री आपको रिफ्रैक्टिव एरर में लेनी पड़ती है, और वो हमेशा उभर के आती है कि ये चीजें ज्यादा करने की वजह से ये जो एक्सेल लेंथ है वो बढ़ती है। ये जनरल मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा है कि छोटे बच्चों को बार बार प्रतिशय होता रहता है। तो चरक संहिता में एक सूत्र है कि जो भी आंखों के विकार है वो पीनसवत आचरित, पीनस के जैसा उनका ट्रीटमेंट करो। तो ये जो जो भी यहाँ का इंस्ट्रूमेंट है, जहाँ यहाँ पे कफ प्रकोप रहेगा, वात प्रकोप रहेगा और पित्त प्रकोप रहेगा, वो पूरी तरह दृष्टि पे आवरण लाता है। वहाँ की जो बेसिक रचना है उस पे उसका बदल होने में उसका कारण रहता है। इसलिए 1 से 15 के लोगों के हेतु आप देखिए, 15 से 40 में जो रहते हैं उनके हेतु अलग रहते हैं। वो पित्त ज्यादा हेतु रहते हैं, स्ट्रेस फैक्टर रहता है, जागरण रहता है, खाने पीना बाहर के यानी करियरिस्टिक जो रहेंगे, हॉस्टल पे रहना रहेगा, पढ़ाई के लिए बाहर रहना रहेगा। तो उसके हिसाब से उनके जो हेतु है वो उसमें पाए जाते हैं। और 40 ऑनवर्ड जो वो जेरियाट्रिक है, यानी वहां पे शोष ज्यादा रहेगा, डिजेनरेटिव ज्यादा हेतु रहेंगे। अगर हेतु बदले तो चिकित्सा बदलती है। ऐसा नहीं कि चश्मे के लिए ये मेडिसिन है ये दे दो, नहीं। अगर पेशेंट के हेतु बदल रहे हैं, यानी छोटे बच्चों में ना आपको वर्तमान रोग अध्याय में श्लोक मिलेगा कि क्षीर घृत आशित्वात बालानाम वमनम अग्र पूजित। वर्तमान रोग अध्याय में ये श्लोक है, बाल रोग अध्याय में श्लोक नहीं है। वाग्भट जी ने वर्तमान रोग अध्याय में श्लोक कहा है कि हमेशा मीठा खाते हुए जो छोटे बच्चे हैं वो हमेशा दूध वगैरह ऐसे मीठी चीजें खाते हैं, इसीलिए उनके कोई भी डिसीज में पहले वमन करो। तो नाना जी तो छोटे बच्चे का भी वमन करते थे, दूध पीते बच्चे का भी ब्रेस्ट फीडिंग, उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवाया, थोड़ा सा मदन फल या फिर वचा जो है वचा और हनी चटा दिया और वो जो भी दूध है वो बाहर गिर गया। तो वो छोटे बच्चे हैं वो कफज रहते हैं, तो उनका लघु वमन सद्य वमन करके फिर अगर आप चश्मे की तरफ बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। जो 15 to 40 एजेस के हैं उनमें आप रक्तमोक्षण और विरेचन करके आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। और 40 ऑनवर्ड से उनमें भी रक्तमोक्षण विरेचन कर सकते हैं, लेकिन उसमें और कुछ करो ना करो उन्हें कभी ना कभी बस्ती सजेस्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इस तरह से थोड़ा सा हेतु बदल लेंगे, जैसे पेशेंट हमारे एज फैक्टर बदलेगा तो हमें याद रहना चाहिए कि नहीं मुझे इसमें ट्रीटमेंट करने में थोड़े वेरिएशंस लाने हैं। तो ये जो मैंने अभी बताया कि आपको ये समझ में आएगा कि मायोपिया मतलब ये मायोपिया के लिए ज्यादा है कि रेटिना के पहले आपको फोकस हो रहा है, तो उसमें ब्लर दिख रहा है। तो हम मायोपिया का थोड़ा उदाहरण लेके आगे जाएंगे। जैसे दूर का कम दिख रहा है, अगर मायोपिया मतलब दूर का कम दिखना, दूर का कम दिख रहा है माइनस नंबर का, तो उसको हम आयुर्वेद परस्पेक्टिव से क्या क्या देख सकते हैं। तो उसका जो पहला निदान उभर के आता है तिमिर है। चलो ये ब्लड विजन है, मुझे दिख नहीं रहा है, कम दिख रहा है, दिखना कम हो गया, तो हम एक वेग जो कहेंगे कुछ क्या है तो कुछ नहीं, चलो तिमिर ऐसा पहले दिमाग में लाना है। फिर थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो क्या कर सकते हैं। तो प्रथम पटलगत तिमिर में ये लक्षण है कि कि अव्यक्तम रूपम पश्यति, जो भी रूप है वो अव्यक्त पश्यति। अव्यक्त ऐसा पश्य मतलब ठीक से व्यक्त नहीं हुआ, मतलब ब्लर। दूसरा यह है तृतीय पटलगत तिमिर में ना एक श्लोक है कि ऊर्ध्व स्थिते दोषे दूरस्थेन न पश्यति। अगर दृष्टि के ऊर्ध्व भाग में दोष स्थित है तो दूर का नहीं दिखता। तीसरा हम उसको क्या कह सकते हैं, इंद्रिय दौर्बल्य। यानी जैसे हम कहते हैं ना इसको ना बहुत बारीक आवाज भी सुन सकते हैं, इसके कान बहुत तेज है ना। तो सुनना कम हो गया तो कहते हैं कि कान मेरे अभी उतने तेज नहीं रहे। उसी तरह से बारीक से बारीक चीज दूर की दिख रही है लेकिन अभी मुझे उतना नहीं दिखता, तो ये इंद्रिय दौर्बल्य हो गया, जो हम पांडु में वगैरह इंद्रिय शैथिल्य ऐसे शब्द आते हैं। फिर हम और क्या कह सकते हैं, आलोचक पित्त दृष्टि, जो मैंने पांडु में कहा कि इंद्रिय शैथिल्य, क्योंकि दृष्टि मंद हो गई ना, ऐसा हम कह सकते हैं। आलोचक पित्त दृष्टि मतलब दृष्टि मांद्य। तीसरा हम हेतुओं से पता चल जाता है कि जीर्ण ज्वर, जिन लोगों को भी दृष्टि कम हो गई ना, वो बहुत बार ऐसा रहता है कि बहुत दिन तक फीवर चला और अभी थोड़ा सा जो गैप लिया था, मैं ऑफिस में नहीं जा रहा था या फिर स्कूल में नहीं जा रहा था, 8 दिन 10 दिन हो गए, चलो टाइफाइड, अभी मुझे ब्लैक बोर्ड का नहीं दिख रहा है। तो कोई भी बीमारी से जो भी क्षीणता आती है उसके उसके उससे बाहर निकलने के बाद अगर ये ज्वर का ठीक तरह से पाचन नहीं किया गया तो ये दृष्टिमांद्य होता है, ऐसा हमें दिखता है रेगुलर ओपीडी में। क्योंकि क्या है, एंटीबायोटिक लिए एंटीपायरेटिक लिए और काम पे चल दी, ऐसा बहुत बार होता है।
जो आयुर्वेद में ज्वर का परिहार करना बताया गया है 21 डेज के बाद, घृत पी के, यवागु पी के, दूध पी के, उसमें से कोई किसी की भी चीज नहीं हुई रहती है, और ये जीर्ण ज्वर पड़ा रहता है जो इंद्रिय दौर्बल्य को कारणीभूत है। तीसरा जो मैंने अभी आपको बताया था, पीनस। और एक चौथी चीज है ना, ये हमारे आयुष स्कूल से निकली हुई है, जो अनिरुद्ध कालेश्वर जी ने मुझे थोड़ा सा उसकी तरफ मेरा ध्यान उन्होंने दिया। मज्जावृत्तवात। मज्जावृत्तवात में एक लक्षण है विनमन। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो आईबॉल है ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिंग इमेज हो सकती है, लेकिन ये पहली अगर आप देखेंगे कि आईबॉल नॉर्मल है और ये फोकस सीधा रेटिना पे आ रहा है, तो बहुत बार क्या होता है कि फोकस पीछे नहीं जाता, ये आईबॉल की जो लेंथ है यहां से यहां, यानी ये जो पिछला पर्दा है रेटिना, ये थोड़ा सा पीछे खींच जाता है, यानी आईबॉल जो है ना वो ओवल ओवल शेप हो जाता है, ऐसा इलिप्सॉइड शेप। तो ये जो है ना ये विनमन ही है। या फिर सिलेंडर नंबर जब कहते हैं हम, कॉर्निया जो है, कॉर्निया का एक कर्वेचर रहता है, तो ये कर्वेचर ज्यादा बड़ा हुआ रहता है तब सिलेंडर नंबर लगता है। तो ये जो भी उसका खुद का आकार है, वो आकार विनमन होने की वजह से, मराठी में हम उसको वाकर्ण बोलते हैं, वाकर्ण, हिंदी में क्या शब्द मुझे याद नहीं आ रहा, टेढ़ा होना कहते हैं या फिर दबना। तो ये विनमन होने की वजह से हमें ठीक नहीं दिखता, ये मज्जावृत्त वात, ऐसा निदान करके भी हम ट्रीट कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये आपको विचार आपके मन में निर्माण करने के लिए बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि इतने सारे निदान है, ये सब है एक ही, हम अलग अलग नामों से बोल रहे हैं, क्योंकि संहिता की स्पेशलिटी, खासियत ही यही है कि उन्होंने एक विषय इतना कंसाइज करके बताया है कि जैसा एक सॉफ्टवेयर, संहिता एक सॉफ्टवेयर जैसी है कि आप एक बाहर से कोई भी चीज लो और उसमें डालो और उसके अलग अलग एंगल्स आप देख लो, उसमें रन करो, और वो रन होगी तो आपको हर एक चीज में पूरी संहिता ऊपर से नीचे तक छाननी पड़ेगी। इसलिए हमें 14,000 6,000 वाली बुक नहीं लगती, थोड़ा सा ये हमारा ये 120 अध्याय की संहिता है, ये यही ले लो और किसी भी डिसीज को ले लो, उसमें हमें पूरी तरह उसका विवेचन मिल जाता है। और जो आखिरी बात है जो मैंने बताई थी, औपद्रविक, ये बहुत सारे अलग अलग डिसीजेस का उपद्रव स्वरूप निर्माण हो सकता है, इसलिए हमें उसकी हिस्ट्री प्रॉपर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, हेतुएं निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना हेतुए के सिर्फ आंखों का पेशेंट आ गया तो चलो इसको त्रिफलाग्रुत से तर्पण करवा देते हैं और सप्तामृत लगा देते हैं, तो बात नहीं बनेगी। बन सकती है लेकिन वो अंधेरे में तीर चलाने जैसा है, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो रह गया। तो अंजन बताएंगे, तर्पण बताएंगे, धारा अश्चोतन सभी बताएंगे, लेकिन अगर ये चीज तो पे बिना ध्यान दिए हम सिर्फ नेत्र नेत्र करते बैठेंगे तो उस पे हमें पूरी तरह से यश नहीं प्राप्त होता। देखिए ये आंखों का जो है ना उत्तर तंत्र में क्यों अलग लिखा है, सिर्फ अभ्यंतर चिकित्सा करके नहीं होता और सिर्फ स्थानिक चिकित्सा करके नहीं होता। अगर हम 80-20 रूल निकाले लगाए कि 80% सामान्य चीजें रहती हैं और 20% विशेष चीजें रहती हैं, तो ये 20% विशेष ही सिर्फ नेत्र रोगों में लिखा है, नेत्र रोग के अध्याय में लिखा है, बाकी 80% सामान्य बाकी संहिता में लिखा हुआ है। तो ये 80% भी हमें पता होना चाहिए, उसके बाद ये 20% हमें समझ में आएगा कि ऐसा क्यों करना चाहिए। जैसे कफज अभिषंद अध्याय में आप देखेंगे कि वहां पे तिक्त घृत से घृतपान करने के लिए कहा है, रक्तजाभिषंद या फिर पित्तजाभिषंद में जीवनीय गण सिद्ध से घृत कहा हुआ है। तो ये जो भी चीजें हैं हम सूत्र स्थान में कहाँ पे देख रहे हैं, निदान स्थान में, चिकित्सा स्थान में, कहाँ कहाँ पे ये यही योग आए हुए हैं, उससे हमें समझ, जैसे गृहिणी में देखेंगे तो वहां पे आपको तिमिर लक्षण दिखेगा कि गृहिणी में भी तिमिर लक्षण है। प्रवीण जोशी सर ने ना मुझे ऐसा कहा था कि आपको एक मुझे होमवर्क दिया था कि वाग्भट निकालो और जो भी योग के नीचे परम लिखा हुआ है वो श्लोक मुझे लिख के दे दो, वो उस व्याधि का परम योग है। तो जैसे आंखों के तिमिर अध्याय, आप तिमिर प्रतिशत अध्याय निकालेंगे तो तिमिर प्रतिशत अध्याय में पहला ही योग है वो परम योग है, वो है जीवंत्यादि घृत। जीवंत्यादि घृत जो है वो तिमिर का परम घृत है, ऐसा लिखा हुआ है। तो ये सब परम मैंने निकाले थे। तो आप देखेंगे शोष अध्याय, राजेक्षमा अध्याय में एला अजमोदादी रसायन दिया हुआ है, वो शोष का परम योग है, लेकिन उसकी फलश्रुति में तिमिर लिखा हुआ है। तो हमें संहिता में पढ़ते वक्त थोड़ा सा आंखें या फिर हमारे एंटीना जो है वो अगर हमने ऑन रखे तो बहुत जगह पे नेत्र रोग दिखाई देंगे, सिर्फ उत्तर तंत्र में ही नेत्र रोग है ऐसे नहीं है। तो शोष हो गया है और उसकी वजह से जब तिमिर हो गया है, हम मुझे इसका
संप्राप्ति जो है वो अपतर्पण जन्य लग रही है, और जीर्ण ज्वर, शोष, पांडु, वातज प्रमेह कहे या फिर वात व्याधि कहे, अपतर्पित संप्राप्तियां जहां पे भी है, जहां पे मुझे संतर्पण या फिर ब्रूहण करना है, उसमें ज्यादा संतर्पण से ज्यादा ब्रूहण करना है, तो मैं आंखों के लिए कौन सी इस्तेमाल कर सकता हूं? तो एला अजमुदादी रसायन इज द बेस्ट। ऐसा थोड़ा सा हम विवेचन करके अगर मेडिसिन देंगे तो बहुत अच्छे से काम हो जाता है। मेडिसिन बहुत है वो, यानी उसमें बोलने के लिए बहुत है। आज हम एक सामान्यत्व को लेकर पकड़ के चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ये चीज है। ये थोड़ा सा ये हो गया ग्रंथों का। मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत डिटेल ये हो रहा है, बहुत स्लाइड्स बड़ी है। तो एक शारीर स्थान में आपको रेफरेंस दिखे कि वन है ध्रुव का रूप पकता है, यानी रूप का पाचन करने के लिए अग्नि कारणीभूत है। दूसरा, हमें उदर चिकित्सा में भी लक्षण में एक श्लोक में होता है कि सर्वे रोगापि मंदे अग्नो, यानी जो भी रोग है वो सब अग्नि मंद होने से ही होते हैं। तो थोड़ा सा एक उदाहरण पर मैं देता हूं कि हमने बचपन में ये सब खेल खेला हुआ है कि एक लेंस लेते हैं और पेपर के सामने रखते हैं, और ये धूप में अगर हमने ये लेंस पेपर पे फोकस की तो ये कागज जल जाता है। ये पेपर जल क्यों रहा है? ताकि ये जो प्रकाश किरण आ रहे हैं वो कॉन्वेक्स लेंस से आके एक जगह पे फोकस हो रहे हैं, जिसको हम हमारी भाषा में तीक्ष्णत्व कहेंगे। यानी अगर किसी चीज को मुझे भेदना है तो मेरे पास तीक्ष्ण गुण लगेगा। तो हम इससे क्या कर रहे हैं? ये प्रकाश को जो उष्ण गुण है वो तो है, लेकिन उसके साथ उसका तीक्ष्णत्व बढ़ा रहे हैं, तो ये भेदन और उसका ज्वलन हो रहा है। तो अभी देखिए, हम जब मायोपिया के पेशेंट को निगेटिव नंबर की लेंस लगा रहे हैं, माइनस नंबर की लेंस लगा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? जो भी रेज आ रहे हैं उनको यहां पे क्या कर रहे हैं? हम फोकस कर रहे हैं, यानी कॉन्वर्ज कर रहे हैं। और यहां पे हम क्या कर रहे हैं? डाइवर्ज कर रहे हैं। तो डाइवर्ज को मैं शब्द यूज करूंगा, हम मंद कर रहे हैं। क्या है मेरा थोड़ा सा एक विचार हम करके देखते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि वात पित्त कफों के इम्बैलेंस से व्याधि हो जाते हैं, तो तिमिर भी वात पित्त कफों के इम्बैलेंस से होने चाहिए। तो मैंने चश्मा लगाने के बाद ये वात पित्त कफ कैसे बैलेंस हो जाते हैं? चश्मा लगाने के बाद मुझे कैसे सब कुछ ठीक से दिखता है? वात पित्त कफ तो शरीर के अंदर है, ये बैलेंस कैसे हो रहा है? तो ये थोड़ा सा विचार करते करते जब हम आगे गए तो पता चला कि थोड़ा सा पीछे जाना है। वात पित्त कफ जिन चीजों पे खड़ा हुआ है वो है गुण। 42 जो गुण है उसमें से जो 20 गुण है, उन 20 गुणों का विचार हम करेंगे जो दातार शास्त्री जी ने बहुत अच्छी तरह से किए हैं, तो हमें पता चलेगा कि ये मंदत्व हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो क्या है? जैसे देखिए, हमें रूप अग्नि जो है वो पाचन कब करेगा? रूप का पाचन करने के लिए हमें अग्नि ऑप्टिमम लेवल में रहेगा चाहिए। तो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं कि मुझे एक आध चीज दिखती है तो ऐसा समझे मेरी आंखें ठीक है, मेरे आंखों में जो अग्नि है वो सुस्थित है। लेकिन अगर भौतिक जग में अग्नि कम होता गया, मतलब लाइट कम होती गई, तो मुझे देखिए ना, हम ग्राउंड पे खड़े रहते हैं क्रिकेट खेलते वक्त, जैसे जैसे शाम होती जाती है, अग्नि महाभूत कम होता जाता है, तो दूर का दिखना बंद हो जाता है। जैसे जैसे शाम बढ़ती जाती है, सूर्य ढलता जाता है, तो दिखना कम हो जाता है। यानी बाहर का अग्नि अगर कम हो गया तो मुझे दिखता नहीं है। उसी तरह जो भी बाहर का अग्नि है वो पचाने की क्षमता मेरे आंखों के अग्नि में रहनी चाहिए। तो वो कब पॉसिबल होते? जब मैं नाइट विजन गॉगल्स, इंफ्रारेड गॉगल्स पहनता हूं, तो मैं रात में भी देख सकता हूं। क्योंकि रूप तन मात्रा जो तेज महाभूत है वो थोड़ी प्रमाण में वहां पे अवेलेबल है। वो थोड़ी प्रमाण का मुझे ठीक से उसका पाचन करना है, ना अति करना है ना कम करना है, सम्यक पाचन करना है। अभी उल्टी चीज हो गई कि बाहर भौतिक वर्ल्ड में अग्नि सम है, लेकिन जो आंखों में जो अग्नि है, आलोचक अग्नि कहो या फिर आंखों में जो भी पाचक अग्नि रहेगा, वो अग्नि अगर कम हो गया तो मुझे अन्न भी उसी तरह से या फिर उसका पाचन कर, वो जिस चीज का पाचन करेगा वो भी कम ही मात्रा में डालना पड़ेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं? अग्नि का प्रमाण भी थोड़ा सा मंद करके अंदर अंदर डाल रहा हूं। तो अग्नि मंद होके जाएगा तो मुझे, यानी जितना मैं पचा सकता उतना मैं खाऊंगा, तो मुझे ऑप्टिमम लेवल में एनर्जी मिलेगी, ना गौरव होगा ना लघुता होगी, ऑप्टिमम लेवल में एनर्जी मिलेगी। तो ऐसा थोड़ा सा अनुक्त व्याधियों का विचार हम दोषों के हिसाब से, गुणों के हिसाब से करने लगेंगे तो ये सब क्रैक हो सकता है। तो जनरल अंडरस्टैंडिंग हम जो मैंने कहा, ये थोड़ा सा मैंने एक विचार देने की कोशिश करने के हिसाब से स्लाइड बनाए हैं, वरना ये चश्मे के लिए हम 2-2 3-3 घंटे बात कर सकते हैं। तो ज्वर, जो मैंने शोष कहा, अपतर्पण जन्य व्याधि, या फिर
उदान का क्षय, प्रयत्न ऊर्जा बल वर्ण स्मृति क्रिया, जो उदान का कर्म है, तो उसमें ना एक वर्ड है वर्ण। तो वर्ण जो हम हमेशा रंगवाचक समझते हैं, तो रंगवाचक एक हाफ ट्रूथ है। दूसरा ट्रूथ है, जैसे हम कहते हैं ना आ ई उ, उसको हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो वर्ण सिर्फ रंगवाचक शब्द नहीं है, वर्ण ये जो शब्द है वो आकारवाचक भी है। तो जो मैंने कहा कि मज्जावृत्तवात में विनमन होता है, यानी वो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, वो थोड़ा दबाया जाता है, तो उसका वर्ण बदल गया, उसका आकार बदल गया, तो भी हमें दिखने में तकलीफ आती है। तो ये उदान का क्षय है। उदान अपना काम, वर्ण खुद का स्थित रखना, वो ठीक से काम नहीं कर पाता। और तीसरा जो है वात पित्त वृद्धि और कफ क्षय। इतना सब कुछ हम आंखों चश्मे के बारे में बोल सकते हैं। वात पित्त वृद्धि और कफ क्षय, ये अगर मुझे ऑर्गेनाइजर्स थोड़ा सा कभी चश्मे के बारे में बताने के लिए समय देंगे, तो मैं एक आधा घंटा सिर्फ वात पित्त वृद्धि और कफक्षय के बारे में बताऊंगा। इससे थोड़ा सा डाइवर्जन हो जाएगा, लेकिन जो भी मैंने पीछे की स्लाइड्स बताई वो सिर्फ आप ध्यान में रखिए और हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। तो जनरल ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं? ट्रीटमेंट में कुछ अलग नहीं करना है, पहले हेतुएं देखने हैं और काय चिकित्सा की ट्रीटमेंट में आप क्या कर सकते हैं वो करना है। और आंखों के लिए क्या करना है कि जो 15 से आगे जो है उनका रक्तमोक्षण कंपलसरी करना। अभी गोगटे सर की वजह से और चंद्र कुमार देशमुख सर की वजह से हमें रक्तमोक्षण का एक सॉफ्ट फॉर्म मिल गया, वो है विद्यकर्म। तो 15 के नीचे के लोगों जिनका हम रक्तमोक्षण नहीं कर सकते, उनका हम विद्यकर्म कर सकते हैं। तो विद्यकर्म के जो पॉइंट है वो आप चंद्र कुमार देशमुख सर में के लेक्चर में बहुत बार सुन चुके होंगे। वो विद्यकर्म करना है, एक मृदु विरेचन देना है, और नस्य, नेत्रधारा, आश्चोतन, अंजन, ये चीजें करनी ही है। अभ्यंतर क्या देना है? अभ्यंतर हर पेशेंट का अलग रहेगा। वो वातज पित्तज कफज के दोषों से निर्णय होके ही आगे जाएगा, जो उनके हेतु रहेंगे। जो आप काय चिकित्सा में दे रहे हो वही आपने देना चाहिए। फिर भी अभ्यंतर में मैंने कुछ द्रव्य यहाँ पे लिखे हैं, उसमें से एक द्रव्य के बारे में बताता हूँ, वो है लघु मालिनी वसंत, जो जीर्ण ज्वर का बहुत अच्छा, पांडु का बहुत अच्छा ये है। और उसको जो गुणेश शास्त्री है, गुणेश शास्त्री जी लघु मालिनी वसंत का वर्णन करते हैं बाल मित्र। उन्होंने एक ही शब्द में उसका सब कुछ क्वालिटीज बता दिया। बाल मित्र, जो हमारे सातारा के फड़के शास्त्री थे, गोआ फड़के, अच्छे रसशास्त्री थे, उनका रसशास्त्र का एक बुक है सिद्ध औषधि प्रयोग। उसमें उन्होंने लिखा है कि ज्वर के बाद अगर किसी की नजर कम आ गई तो उसे लघु मालिनी वसंत मक्खन और शक्कर, शक्कर और मधु के साथ खिलाना। अगर मक्खन रोज नहीं मिल रहा है तो जो क्या कहते हैं मलाई रहती है दूध के ऊपर की, मराठी में हम साय कहते हैं, तो वो साय, साखर आणि मध, शहद, शक्कर और जो मलाई है उसके साथ लघु मालिनी वसंत उदान काल में दीजिए। ये बहुत ही अच्छा योग है। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, 80% लोगों में ये इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि ये ज्वर को भी डिनोट करता है, बाल रोगों को भी डिनोट करता है, शिशु रोगा ऐसा उसमें फलश्रुति में है लघु मालिनी वसंत के। और तीसरा, ये पित्त अच्छी तरह से शमन करता है, ज्वर को अच्छी तरह से हरता है, कषायत्व अच्छी तरह से इसका निर्माण करता है। उसका जो अनुपान है वो मज्जा का ब्रूहण करने के लिए, यानी मक्खन है। इसकी वजह से ये लघु मालिनी वसंत भी आप दिमाग में लेके चलेंगे। चलो मैं इसको सिर्फ सप्तामृत लोहों पे नहीं अटकूंगा, दूसरा कुछ देना है तो आप लघु मालिनी वसंत का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थोड़े से मैं केसेस बताता हूं कि क्या हो सकता है। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा ब्लर है, ये पुराना है बहुत। ये पेशेंट जब मेरे पास आई थी, कहीं और नंबर चेक किया था, तो राइट आई में -10.25 और लेफ्ट आई में -8 था। हमारे यहाँ पे जब चेक किया तो राइट आई में -9.5 और लेफ्ट आई में -8 नंबर था उसका। और उसको 1 साल ट्रीटमेंट देने के बाद उसका ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर में रीडिंग -5 और -6.5 आया। लेकिन उसको जो मैंने रिफ्रैक्शन दिया था वो -4 से वो अच्छी तरह से देख रही थी। उसने ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखी और अभी वो -2 से देखती है। ये -2 से देखने के बाद अभी ये देखिए 2018 और 2019 का आपको दिख रहा है, तो अभी ये 7-8 साल हो गए, लेकिन अभी भी उसका उम्र भी अच्छा ज्यादा हो गया, 33 वगैरह हो गया। अब ये नंबर चेंज नहीं होता, लेकिन अभी भी ये -2 के लेंसेस लगा के काम करती है। मैंने थोड़ा बाजू में यहाँ पे 6x60, 6x36 ऐसा दिया है। वो इसलिए दिया है कि विजन क्या रहती है, कि कौन सी लाइन पेशेंट पढ़ता है उसको हम विजन कहते हैं। ये 6x6 लाइन अगर उसने पढ़ ली तो वो नॉर्मल विजन है, ऐसा कहते हैं।
तो इसमें हमने क्या कर दिया, ये देखो, ये है 27 एज की पेशेंट थी तब, कुछ 27 के आसपास एज था। एक्चुअली ऐसा है कि एक बार हाइट बढ़ना बंद हो गई तो मायोपिया बढ़ता नहीं है। कुछ अपवादात्मक पैथोलॉजिकल मायोपिया के चेंजेस रहते हैं, मायोपिया के चेंजेस केसेस रहते हैं जिसमें नंबर बढ़ता जाता है, लेकिन वो बहुत कम रहते हैं। तो जब नंबर बढ़ना रुक जाता है तो नंबर कम होना भी मुश्किल हो जाता है। जैसे एक बार हाइट बढ़ना बंद हो गई तो हाइट बढ़ा नहीं सकते। एक मटका है जो गीला है, उसका आकार हम तभी बदल सकते जब वो गीला है। एक बार वो पक गया तो उसका आकार नहीं बदल सकते। इसी तरह जो एक्सियल लेंथ एक बार बढ़नी बंद हो गई तो वो ज्यादा बढ़ती भी नहीं और कम भी नहीं होती। फिर भी ये सब मॉडर्न साइंस के जो पोस्टुलेट्स है वो बाजू में रख के इस पेशेंट के रिजल्ट्स बदल गए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमें स्कोप बहुत है। ऐसा नहीं कि मॉडर्न साइंस ने कहा कि इतना है तो इतना ही है। हमारा ये कैसा हो गया, इसको थोड़ा साइंटिफिक ये दो, तो इसके लिए बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। पूरे महाराष्ट्र में 4 लोग शालाक्य की ट्रीटमेंट करेंगे तो ऐसा नहीं होता। एलोपैथी में क्या रहता है, रिसर्च का डिपार्टमेंट अलग रहता है, मेडिसिन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अलग है, फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट अलग है, सेल्स टीम अलग है, मैन्युफैक्चरर्स अलग है, क्वालिटी कंट्रोल अलग है। डॉक्टर्स को सिर्फ काम है कि प्रिस्क्रिप्शन करो। आयुर्वेद में वैसा नहीं है, रिसर्च भी खुद, मैन्युफैक्चरर भी हम है, सेल्स टीम भी हम ही है। हम ही रिसर्च करेंगे, हम ज्यादा ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, लेकिन इसका जो है जितना ज्यादा डेटा तैयार होगा उस पे कंक्लूजन निकल सकता है। थोड़े से और केसेस दिखाता हूँ, ये थोड़े से विशेष केसेस हैं। ये जो लड़का है ये 9th क्लास में था जब 2013 में हमारे पास आ गया। तो उसको लेफ्ट आई में 6/36 नजर थी, मतलब सिर्फ 2 लाइन में पहचान पाता था। तो इसको एम्ब्लायोपिया कहते हैं मॉडर्न साइंस में, कि 2 लाइन के नीचे अभी उसको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसका जो एज है वो 14 एज थे। उसका 9 इयर्स के बाद ब्रेन जो है वो विजन चेक करना रुक जाता है, यानी विजन विजन की मेमोरी जो है वो रुक जाती है, उसके ज्यादा विजन नहीं बढ़ती। आपकी कौन से भी नंबर का चश्मा लगाओ विजन नहीं बढ़ेगी, ऐसा रहता है। लेकिन उसको हमने उस वक्त थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट दी, उसने डिसकंटिन्यू की। बाद जो 2018 में आई थिंक एसवाई में था, उसको में भर्ती होना था, इसलिए उसने कहा कि मुझे ट्रीटमेंट लेनी है। तब वो आया, तभी उसकी 6/18 हो गई। वो 3-4 महीने ट्रीटमेंट लेके गायब हो गया था। लेकिन 6/18 मतलब आप देख सकते हैं कि 2 लाइनें उसके अपने आप बढ़ गई है आफ्टर 14 एज के बाद। जो 9 एज के बाद बढ़ेगी नहीं, ऐसा मॉडर्न साइंस कहता है। फिर हमने उसको ट्रीटमेंट कंटिन्यू की। आप देख सकते हैं जून महीने में वो आया है और सितंबर में उसको दोनों आंखों में 6/6 विजन आ गई। अभी तक उसकी विजन 6/6 ही है, उसमें कोई ये नहीं हुआ है। इसको हमने अलग कुछ भी नहीं किया है। जो मैंने ये, आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इससे अलग कोई भी द्रव्य नहीं इस्तेमाल किया। उसका तब का जो भी व्याधि हेतु थे, जो भी काय चिकित्सा के, उसको थोड़ा पित्त हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, उसके हिसाब से कुछ मेडिसिन ऊपर नीचे 10-15 दिन में किए होंगे तो किए होंगे। लेकिन आंखों के लिए इससे ज्यादा कुछ अलग इस्तेमाल हम नहीं करते, ग्रंथों में जो लिखा है वही है। ये 2018-19 की बात है। ये थोड़ा सा वीडियोस थे, लेकिन हम थोड़ा आगे जाते हैं। हम कैटरेक्ट की तरफ जाते हैं। आगे भी मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ। कैटरेक्ट जो है, सर मेरे पास टाइम है ना, थोड़ा थोड़ा मैं रन कर लेता हूँ फास्ट, जो भी चीजें बतानी। Yes, sir. कैटरेक्ट जो है, हाँ, कैटरेक्ट का मॉडर्न साइंस में जो ट्रीटमेंट है वो है वे ऑपरेशन करना। आयुर्वेद में भी वही ट्रीटमेंट है कि वेदन चिकित्सा, वो वैद्य व्याधि है। लेकिन बहुत सारे लोग आते रहते हैं कि चलो आयुर्वेद में कुछ है क्या, ड्रॉप डालने के बाद कैटरेक्ट चला जाएगा, तो कैटरेक्ट चला नहीं जाता। लेकिन उसका हम यापन कर सकते हैं। यापन मतलब जितना है उतना हम रख सकते हैं। तो ये केस 2017 में आई थी और 2018 में उसकी विजन बढ़ गई और उतनी की उतनी ही है। दूसरी केस 2013 में 6/12 थी और 2016 में 6/12 है। ये थोड़ा सा पुरानी पीपीटी है, उसमें थोड़ा अपडेट नहीं किया। ये जो पेशेंट है जून 2018, ये वैद्य की एक हमारी माता जी है। 2026 में भी उनकी विजन 6/9 ही है। अभी तक उनका कैटरेक्ट का ऑपरेशन नहीं हुआ है। और एक हमारे जो कोल्हापुर के वैद्य है, उनके पिताजी है, अभी कल की ही बात है, वो 2017 से ट्रीटमेंट ले रहे हैं। उन्हें तब कहा था कि कैटरेक्ट ऑपरेशन आज के आज करना पड़ेगा। 6/12 विजन थी उनकी। जो वाग्भट में काच यापन अंजन है, प्रतिष्ठित वाग्भट अध्याय में जो साउथ इंडियन कंपनी उसी नाम से अंजन मिलता है, वो अंजन रेगुलर शोधन, रक्तमोक्षण, विरेचन, रेगुलर तर्पण,
रासायनिक चिकित्सा मतलब च्यवनप्राश वगैरह, वो वैद्य जो घर पे बैठते हैं, उनकी टाइप से वो लेते रहते हैं। हमारे पास अभी कल की बात, इसलिए वो अपडेट नहीं किया, 2017 से लेकर आज डेट 2026 मार्च महीना, अप्रैल महीना, आज भी उनकी नजर 6/12 ही है, थोड़ी भी नजर कम नहीं हुई। अभी तक वो खुद का काम करते हैं, गाड़ी चलाते हैं। कैटरेक्ट वैसा का वैसा है, कैटरेक्ट गया नहीं है, लेकिन उसका यापन हमने अच्छे से करके रखा है। एक्चुअली पेशेंट आने के बाद पहला उसको यही कहना है कि फर्स्ट ट्रीटमेंट इज वेदन, यानी ऑपरेट करना। इसमें आयुर्वेद का जो महानता है वो बता सकते हैं कि ईस्वी सन पहले 5,000 साल, यानी आपके 2,000 साल, 7,000 साल पहले आयुर्वेद में कहा है कि ये कवच लिंगनाश है, उसका वेदन करके निकालो, ये किसी भी औषधि से जाएगा नहीं। आज 7 साल हो गए, कोई भी ऐसी औषधि नहीं निकली जो ड्रॉप डाले और कैटरेक्ट चला गया। तो आयुर्वेद में जो कहा है एक बार आसान है तो आसान है, आप आंख निकल उसकी आंख लगाओ टेक्नोलॉजी से, वो अलग बात है, लेकिन ये आंख की चीज है जो खराब हो गई है, ये ठीक नहीं होगी। एक बार आयुर्वेद में कहा तो इसे कहते हैं शाश्वत, मराठी में कहते हैं काळाच्या कसोटीवर घासणे, समय पे जज करते हैं ना, 7,000 साल हो गए फिर उनका जो नियम है वो बदला ही नहीं है। तो ये कैटरेक्ट जो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दृष्टिमंडल में हमें ये श्वेतता दिखाई दे रही है, तो कैटरेक्ट को हम कफज लिंगनाश ऐसा ट्रीट करते हैं। तो लिंगनाश के पहले नाम हमेशा काच होता है और काच के पहले तिमिर होता है। वाग्भट तिमिर प्रतिषेध अध्याय का पहला ही श्लोक है, तिमिरम काचता याति काचो अपि अंधम उपेक्षया, यानी अगर अब आप तिमिर की उपेक्षा करेंगे तो काच होगा, और काच की उपेक्षा करेंगे तो आंधे होगा। आंधे मतलब लिंगनाश। तो नेत्र रोगेशु नेत्र रोगेशु घोरम जब तक तिमिर अवस्था में उसको साधन करो, यानी वो ठीक कर दो। काच या अंधत्व या फिर लिंगनाश देखो, काच में गया तो उसको यापन करो, और लिंगनाश हो गया तो वो शस्त्र कर्म साध्य है, ये सुश्रुत जी ने लिखा हुआ है, जो हमें अभी के दुनिया में वही वैसा का वैसा दिखाई देता है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए पेशेंट हमारे पास कब आता है, तो पेशेंट आता है हमारे पास कैटरेक्ट होने के बाद। हो गया है ना, कम हो गया मतलब नाश हो गया, तो लेकिन जैसे उसको काट रहा है तो उसके होगा, मतलब उसका दूर का या नजदीक का एकदम हुआ होगा। टीमें पटलगत अध्याय में दृष्टि के अधस्थित अगर दोष नजदीक का नहीं दिखता, क्रॉस हुए हैं, उनका नजदीक का दिखने में तकलीफ आ रही है, तो यही पे हमें तिमिर हुआ है। मायोपिया भी नहीं हुआ, मुझे अच्छा दिखता था, लेकिन 40 के एज में आने के बाद आपको नजदीक का दिखना जब कम हो गया है तभी आपका तिमिर हुआ है। इस तिमिर को हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, हम सिर्फ नजदीक का चश्मा लगाते हैं। तो नजदीक का चश्मा लगाने के बाद 10, 15, 20 साल के बाद वो कांच में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो यही पे अगर हम उसको अंजन करते जाएंगे, और कन्वर्ट कहां पे हो रहा है, कफज लिंगनाश में। देखिए इसको हम कफज लिंगनाश कहते हैं, ये जो लक्षण है कैटरेक्ट के वो कफज लिंगनाश, यानी मूर्तिमंत कफ दृष्टि में आपको श्वेत ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये कफज लिंगनाश के पहले तो कफज काच हुआ होगा, और कफज काच के पहले कफज तिमिर हुआ होगा, यानी कफानुबंधी तिमिर हुआ होगा। तो हमें पता चलता है कि दिनचर्या के अध्याय में ये श्लोक है, चक्षुष तेजोमय तस्य विशेषात श्लेष्मणो भयम, यानी आंखों को कफ से ज्यादा भय है। देखिए ये जो श्लोक है ये हाफ श्लोक है, उसके पहली लाइन, उसकी आगे की लाइन है कि तस्मात् सप्तरात्रात आपको रसांजन का अंजन करना है। अगर आप 7-7 दिन में रसांजन का अंजन करेंगे, उससे कफ का स्त्रावण करते रहेंगे, और कफ का स्त्रावण होते जाएगा, तो आगे जाके कफ दोष वहां पे रहेगा नहीं, और आगे जाके लिंगनाश होगा नहीं। तो एज अ आयुर्वेद प्रैक्टिशनर हमारे पास कितना बड़ा स्कोप है। जैसे लोगों को ब्रश करने की, जैसे पहले राख से करते, लेकिन टूथपेस्ट लेके आए, टूथपेस्ट बेच रहे हैं पूरी दुनिया, हम अंजन करके ये पूरा का पूरा नया कंपार्टमेंट खुला खोल सकते हैं, नया इंडस्ट्री खोल सकते हैं, कि पेशेंट को सिर्फ रेगुलरली अंजन कराने को कहना है, पहले वैद्यों ने करना है, फिर लोगों को बताना है। जो ब्रश करते हैं उसके 1/10 टाइम सिर्फ अंजन करने को लगता है, रसांजन करना तो 5 या 7 दिन में ही एक बार करना है। तो देखिए हमने किसी ने भी अंजन नहीं किया, इसलिए 40s में हमें नजदीक का चश्मा लगा, और
60 में जाके कफज लिंग नाश हो रहा है, और हम कह रहे कि नहीं ये हो मॉडर्न साइंस कह रहा है नहीं होने ही वाला है, अगर आपकी उम्र हो गई, ये डिजेनरेटिव चेंजेस है, जिसकी उम्र होगी उसको कैटरेक्ट होगा ही होगा। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट ब्लाइंडनेस कंट्रोल सोसाइटी स्थापित की, उसमें फ्री में कैटरेक्ट के ऑपरेशन करवा रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि आयुर्वेद की कम्युनिटी ही उतना जोर लगा के इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही है कि हम जैसे आप टूथब्रश करने के लिए तो टाइम देते हैं, ब्रश करके भी डेंटिस्ट के दवाखाने जो फुल है, तो हमारा अंजन क्यों नहीं कर रहा? इसलिए जो पहला फोटो दिखाया हमने, जो अंजन किया, और हमने अंजन का एक कैंपेन रन किया, तो उसकी शुरुआत गाडगिल सर से की थी। वो जो फोटो था, गाडगिल सर को जब पहले अंजन दिया, तो वही जो भी वैद्य है उसको हम पहले बताते हैं कि आप रोज अंजन किया करें तो सोसाइटी बदलेगी। और जो इतना खर्चा गवर्नमेंट कर रही है, या फिर लोगों को भी ये इतना बड़ी ओटी लगती है उनको, लेंस का जो खर्चा है, यानी एक्चुअली कॉमर्स के हिसाब से एक इंडस्ट्री बंद करने को है, लेकिन वो हम सोचेंगे नहीं, हम आयुर्वेद का कितना अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं ह्यूमैनिटी के लिए, उसका सोचेंगे कि अगर सिर्फ 10 सेकंड आप अंजन के लिए दे रहे हैं तो बहुत सारे, सिर्फ कैटरेक्ट नहीं, रेटिनोपैथीज भी हम बचा सकते हैं। तो ये देखिए कि हम न जानते हुए बचपन से ही ये श्लेष्मा का आंखों में संचय कर रहे, फिर प्रकोप होके, प्रसर होके, स्थान संचय के व्यक्ति और भेद में वो जा रहा है, और वो भेद में जाने के बाद वो असाध्य हो रहा है, व्यक्ति में जाने के बाद वो याप्य हो रहा है, और वहां पे ही हम सीधा हाथ डाल रहे हैं। मॉडर्न साइंस वहां पे जाने के बाद काम कर रहा है, हम उसके पहले बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। ये छोटे छोटे उदाहरण मैंने इसीलिए दिए हैं कि जनरल प्रैक्टिस में आप सोच किस तरह से सकते हैं। चाणक्य बहुत बहुत बड़ी चीजें और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताने के लिए कि क्या क्या उसमें हम कर सकते हैं। लेकिन आई होप कि ये जो चीजें है वो थोड़ा, आप चाणक्य को तो एक घंटे में सिखा नहीं सकता, लेकिन मोटिवेशन लेके, टेक होम मैसेज लेके जो भी कर सकते हैं। तो ये स्वस्थ ही तो देखिए, अंजन, नित्य, सप्तरात्र श्रावण, विशेषाश्लेषण भयम और कैटरेक्ट, जो ये स्लाइड है मैंने पहले ही बोल दी कि सिर्फ आपने अंजन करने की खुद से सवय लगा दी और पेशेंट को भी दिया, तो हमारा भी अच्छा होता है और पेशेंट को भी आयुर्वेद के नजदीक आने का मौका मिलता है। सर, ये तिमिर का विषय शुरू करेंगे या फिर डायरेक्ट केसेस ले सकते हैं? ये बहुत इंटरेस्टिंग विषय है एक्चुअली तिमिर का। उसके बाद और ज्यादा नहीं बताया है, तो क्या करेंगे? सर आप अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम इसके लिए ले सकते हैं, तो हम लोग इसे उस हिसाब से आपको बता सकते हैं। सर 10, वी हैव अनदर 20 मिनट्स, 20 मिनट में अगर तो थोड़ा हो सा क्या सकता है। करते हैं, तिमिर पूरा नहीं बताते, लेकिन एक दो थोड़ा सा फैसिनेटिंग श्लोक है, वो मैं बताता हूँ कि थोड़ा सा अलग चीज जो है, और फिर डायरेक्टली केसेस लेते हैं। चलेगा सर, ओके सर। तो थोड़ा सा मैं ये फास्ट रन करता हूँ। जो मैंने कहा था कि पटल के बारे में बाद में कहूंगा, ये दो बाह्य पटल रहते हैं जो वर्तम पटल हैं, और 4 अभ्यंतर पटल रहते हैं, तेजो जलाश्रित, मांसाश्रित, मेधाश्रित, अस्थिश्रित। लेकिन डल्लन ने नीचे एक वहां पे पिन मार के रखी है, चतवारी पटलानी चिकित्सार्थ विभजन हो। देखिए, चिकित्सार्थ विभजन मतलब मांस धातु का विचार कीजिए, मेदो धातु का विचार कीजिए, अस्थि धातु का विचार कीजिए। इसके आगे मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं, क्योंकि देखिए आगे क्या हुआ है वो बाद में बताऊंगा। चलो, ये थोड़ा स्लाइड्स हम पीछे करेंगे। हाँ, प्रथम पटल मैंने अभी बताया, तेजो जलाश्रित, द्वितीय मांसाश्रित, तृतीय मेदोश्रित, और चतुर्थ अस्थ्याश्रित। ऐसा पहले अध्याय में लिखा है, लेकिन तिमिर अध्याय जैसे आप खोलेंगे, तो जब वो तिमिर का वर्णन करने लगते हैं, तो वहां पे लिखा है शीराभिराभि संप्राप्त विघ्नो अभ्यंतरे भृशम प्रथमे पटलो दोष यस्य दृष्टि व्यवस्थितो। तो वहां पे टीका में लिखा है कि अभ्यंतरे इति सर्व अभ्यंतरे काले का स्थिश्रित, काले का स्थिश्रिते प्रथम पटले। रचना के हिसाब से प्रथम पटल तेजो जलाश्रित है, लेकिन जब निदान की बारी आती है तो निदान के हिसाब से प्रथम पटल जो है अस्थ्याश्रित है। मतलब प्रथम पटलगत तिमिर ऐसा आप निदान करेंगे तो आपको अस्थि धातु ध्यान में लाना है, ना कि रस और रक्त धातु ध्यान में लाने हैं। ओके, तो यहाँ पे ये जो थोड़ी इमेज है, आपका थोड़ा ऑप्थेल्मोलॉजी थोड़ा सा याद कीजिए, कि हमें पता है कि ये आईबॉल की बैक साइड है, ये ऑप्टिक नर्व है। ऑप्टिक नर्व में ये वेंस जाती है, जो ऑप्थेल्मिक आर्टरी है। ऑप्थेल्मिक आर्टरी के दो ब्रांचेस रहते हैं, एक ऑप्टिक नर्व के अंदर जाती है और दूसरी ये पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी है। तो ये पिक्चर देखिए, और बाजू में जो श्लोक लिखा हुआ है वो देखिए। ये अष्टांग संग्रह के श्लोक है, ये अष्टांग सुश्रुत या फिर हृदय में नहीं दिखेंगे। यदा दोषा प्रकुपिता प्राप्य रूप वहे सिरे,
रूपवह सिरा मतलब ऑप्टिक नर्व, यहाँ पे सिरा लिखा हुआ है और को कौन सी लिखी है, रूपवह सिरा। दृष्टेर अभ्यंतरातु पटलम समभिद्रुता, तो इसलिए दोष जो जाते हैं वो पहले आखिरी के पटल जो शरीर में आखिरी का पटल लिखा हुआ है वो निदान में पहला पटल है उसी में जाते हैं। तो ये पहले दो लाइन थोड़ा सा पढ़ते हैं, जो मैंने बोल्ड में लिखा है उसको थोड़ा इग्नोर कीजिए। चौथी लाइन पे आए, दृशोपटलम आश्रित्यम नेत्र मध्य अनुसारिणा, यानी आंखों में जो दोष जा रहे हैं वात पित्त कफ, वो नेत्र के मध्य भाग से अंदर जा रहे हैं, जो आपको यहाँ पे पूरी तरह क्लियर कट दिखेगा दिखेगा। जो सुश्रुत या फिर हमारे जो ऋषि मुनि थे वो पूरी तरह शारीर बेस्ड थे। एकैकम अनुपद्यन्ते पर्यायात पटलांतरम, और एक एक पटल को व्याप्त करते हुए शने अनुसृताश्चैव, धीरे 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 वो एक एक पटल को व्याप्त करते, पुष्यंति स्थिरता गता, पुष्ट होते हैं और स्थिरत्व उनका आ जाता है। और ये जो चीज है वो मुझे आपको बतानी है। औषधि रसवीर्याणाम मार्गम आवृत्त नेत्रयो, आंखों में जाने वाले सभी औषध रस वीर्यो, औषधों के रस वीर्यों का मार्ग आवृत्त करते हैं। इसीलिए जो आपने वो आंखों के इसमें पीपीटी देखी, स्लाइड देखी, उसमें पहले रक्तमोक्षण और विरेचन का उल्लेख किया हुआ है। डायरेक्टली शमन देने से कुछ नहीं होता, पहले थोड़ा रक्तमोक्षण, जो छोटे बच्चों में वेदन कर्म या फिर विद्ध कर्म, और बड़ों में रक्तमोक्षण और विरेचन देना ही है। छोटे बच्चों में वमन आपको देना ही है, तभी आपको जो मार्ग है वो खाली मिलेंगे और अवरोध है वो नष्ट हो जाएगा। और इस लाइन से हमें समझ में आता है कि सिर्फ अभ्यंतर चिकित्सा देखे नहीं होगा, स्थानिक चिकित्सा भी करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। अंजन, नस्य, तर्पण, धारा करने इंपॉर्टेंट है कि वहां से उन दोषों को हम बाहर निकाल सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, शल्य अनुलोम गति से और प्रतिलोम गति से निकालते हैं, पीछे खींच के नहीं निकाले तो आगे ढकेल के निकाल दो। तो ये अंजन या फिर धारा जो है वो आगे ढकेल के निकालने की चीजें हैं, और पीछे खींच के निकालना मतलब रक्तमोक्षण करना, विरेचन करना, वो पीछे से खींच के निकालने की चीजें हैं। अगर हमें औषधि का रसवीर्य वहां पे पहुंचाना है तो थोड़ी बहुत का हो ना उनकी शुद्धि करनी पड़ती है। यही मुझे सिर्फ चीज बतानी थी। बाकी ये थोड़ा सा हम ये देखेंगे कि द्वितीय पटल में जो लक्षण लिखे हैं, मक्षिका मशकान केशजालकानि पश्यति, यानी आंखों के सामने ऐसा कुछ उड़ रहा है, काले काले मच्छर वगैरह ऐसा दिखता है, या फिर कुछ क्या कहते हैं, पताका मरीचि कुंडलानी च मंडलानी, ऐसा कुछ ब्राइट कुछ ऐसा है, ऐसा दिखता है। तो मॉडर्न साइंस के हिसाब से ये विट्रस फ्लोटर हो सकते हैं, पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट हो सकता है, विट्रस हिमरेज हो सकता है, रेटानल टीयर, रेटानल डिटैचमेंट भी हो सकता है। लेकिन हमारे हिसाब से अगर पेशेंट को देखना है तो हमें ये लक्षण पूछने हैं और हमें कहना है कि ये द्वितीय पटलगत तिमिर है। अभी द्वितीय पटल कौन सा आ गया, मेदोआश्रित पटल। प्रथम था अस्त्याश्रित, द्वितीय आ गया मेदोआश्रित। तो मेद को ध्यान में लेके ही हमें इनकी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। तृतीय पटल में देखेंगे तो ऊर्ध्वम पश्यति, यानी ऊपर का दिखता है, न अधस्तात्, या फिर नीचे का नहीं दिखता है। छादितानीव वाससा, यानी जो बड़े बड़े रूप है वो किसी पर्दे से ढके हुए हैं ऐसा दिखता है। तो ये थोड़ा सा हम थोड़ा फॉरवर्ड करते हैं क्योंकि केसेस भी देखने हैं। तो एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन, मैकुलर हो रेटिनल डिटैचमेंट, ऐसा पेशेंट आपके पास डायग्नोसिस लेके आता है। लेकिन हमें ये सुश्रुत जी के श्लोक देखने हैं और उसमें समझ में ना है पेशेंट को, पहले हम पूछते थे कि आपको जो सीधी चीज है वो थोड़ी तिरछी दिख रही है क्या, जैसे आगे देखिए, ये देखिए कि बीच का ही नहीं दिखता, बाजू का दिखता है। ये जनरली एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन में दिखता है कि मध्य स्थिते दोषे मध्यस्थेन न पश्यति। एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन, मैकुला जो है वो रेटिना की मध्य का भाग है, तो उसका डिजेनरेशन हो गया तो पेशेंट को मध्य का नहीं दिखता, बाजू का दिखता है। तो हम पेशेंट को पूछना की जरूरत भी नहीं, पेशेंट ने कहा ARMD तो हमें पता चल गया कि तृतीय पटल में दोष है, क्योंकि बीच का नहीं दिख रहा, बाजू का दिख रहा है। जैसे पेशेंट ने कहा कि बीच का दिख रहा है लेकिन बाजू का नहीं दिख रहा, जिसको ट्यूबुलर विजन कहते हैं, तो पेशेंट आके आपके पास नहीं, ये ग्लाउकोमा का केस आता है कि मुझे काच बिंदु है, काला मोतिया जो कहते हैं। तो ग्लाउकोमा में क्या होता है कि पेरिफेरल विजन पहले बाजू चली जाती है और सेंट्रल विजन ही रहती है। तो यहाँ पे दिखे श्लोक में दिखा है, पार्श्व स्थिते दोषे पार्श्वस्थानी न पश्यति, या फिर समन्तता स्थिते सकुलान्यव न पश्यति। बाजू में दोष पड़े हुए हैं तो बीच का दिखेगा और बाजू का नहीं दिखेगा। तो उनके हिसाब से ARMD हो
या फिर ग्लाउकोमा हो, हमारे हिसाब से वो तृतीय पटलगत तिमिर है, इतना ही हमें ध्यान में रखना है, बाकी ज्यादा कुछ ध्यान में नहीं रखना। सुश्रुत जी ने उसका डायरेक्ट प्रोटोकॉल दिया हुआ है तिमिरों का, कि पहले रक्तमोक्षण करो, फिर विरेचन करो, वातज पित्तज कफज डिसाइड करो, और वातज पित्तज कफज डिसाइड करके उनके मेडिसिन दिए हुए हैं। थोड़ा हम वातज पित्तज का बात करेंगे, देखेंगे, फिर उसके चिकित्सा में जाएंगे। देखिए रेटिनल डिटैचमेंट है, ऐसा रेटिना जैसे ही बाहर निकल के आए तो पेशेंट को इस तरह से दिखता है, जो बाजू की इमेज है। तो छादित पानी व वाससा ये लक्षण है। ये आज इंटरनेट की वजह से हमें आसान हो गया ये इमेजेस निकालने के लिए। और भी आप देखेंगे ये ग्लाउकोमा की सकुलानी व पश्यति, पार्श्वस्थिते दोषे पार्श्वस्थेन न पश्यति, या फिर ये देखिए नजदीक का नहीं दिखता लेकिन दूर का दिखता है, अधस्थिते दोषे अधस्थेन न पश्यति, जो मैंने प्रेस बायोपिया में किया आफ्टर 40s में। या फिर देखिए इसमें नजदीक का दिख रहा है क्लियर, इस इमेज में दूर का ब्लर दिख रहा है, ऊर्ध्वस्थिते दोषे दूरस्थेन न पश्यति। इसका मैं आपको आपके घर में किसी भी बड़े व्यक्ति का बाइफोकल चश्मा रहेगा तो आपको देखिए उनका नजदीक का देखने के लिए लेंस कहाँ पे सेट की है और दूर का देखने के लिए लेंस कहाँ पे सेट की है। आपके पास भी किसी वैद्य के पास रहेगा कि दूर का और नजदीक का चश्मा रहेगा, तो नीचे की तरफ जो लेंस रहती है ना वो नजदीक का देखने के लिए रहती है, और ऊपर की तरफ की जो लेंस है वो दूर का देखने के लिए रहती है। तब तो चश्मे का आविष्कार नहीं हुआ था, लेकिन ऋषि मुनियों ने ये, यानी ये हमारा थोड़ा युक्ति प्रमाण लगा के हमें देखना है, और टेक्नोलॉजी में भी हमें आयुर्वेद दिखाई देगा कि ये देखिए बाइफोकल लेंस है, ये देखो नीचे है वो नजदीक का देखने के लिए है, और दूर का देखने के लिए हमें ऊपर का है। तो सुश्रुत जी क्या कहते हैं, ऊर्ध्वस्थिते दोषे दूरस्थेन न पश्यति और अधस्थिते दोषे समीपस्थेन न पश्यति। जानने योग्य बातें, लिंगनाश में ज्यादा देर तक नहीं रहते। ये देखिए प्रथम पटल, देखिए पहले प्रथम पटल में दोष आते हैं, फिर द्वितीय, फिर तृतीय। जैसे ही तृतीय पटल में दोष आते हैं तो वो लक्षण आते हैं, लेकिन उसके बाद हमें क्या करना है, दृष्टि का परीक्षण करना है। अगर दृष्टि में नीली का मतलब नीला रंग दिख रहा है, पीला रंग दिख रहा है, दृष्टि का रंजन हो गया है, तो उसको हम तिमिर नहीं कहेंगे, उसको हम काच कहेंगे। यहाँ पे आपको दो फोटोज दिखाई दिए है, ग्रेइश शेड दिख रही है, इसमें थोड़ी सी येलोइश शेड दिख रही है। ये येलोइश शेड आपको डायरेक्टली नहीं दिखेगी, स्लिट लैम्प से दिखेगी, और ये ग्रेइश शेड जो है वो डायरेक्टली टॉर्च लाइट से दिखेगी, जिसको हम इमेच्योर कैटरेक्ट कहते हैं। दृष्टि का रंजन होने के बाद हम कहेंगे कि इसको हम सिर्फ यापन कर सकते हैं, लेकिन मतलब क्या, एक तो ये है कि जितना व्याधि है उतना रहेगा, या फिर जब तक मेडिसिन है तब तक वो क्लियर दिखेगा, मेडिसिन बंद करने के बाद फिर धीरे धीरे कम होता जाएगा, या फिर जितना है उतना है तो हम रुका सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि स एव लिंगनाशस्तु नीलिका काच संहिता, दृष्टि का रंजन होने के बाद वो वैसे ही बढ़ता गया, तो थोड़ा सा पुराने जमाने में जो कांच रहती थी वो ब्लू हुआ करती थी, उसलिए उसलिए उन्होंने उसको नीलिका रख रखा हुआ। और वो चतुर्थ पटल में भी दोष आच्छादित हो गए, रंजन हो गया। तो एक मिनट, संहिता चार्जर पे पटकन तिकडे तिकडे चार्जिंगला लावलं। तो इस तरह से हमें डिसाइड करना है। दिखना कम हो गया, लिंगनाश का एक ही लक्षण है कि सिर्फ ब्राइट ऑब्जेक्ट ही दिखते हैं, यानी आंखों में सिर्फ टॉर्च लाइट डालो तो टॉर्च लाइट दिखती है, बाकी कुछ नहीं दिखता, तो वो लिंगनाश है। लेकिन उसको काउंटिंग फिंगर भी है, एक फुट से 2 फीट से 3 फीट से अगर उसको गिनना आ रहा है। लॅपटॉपचा चार्जर आणि तिथे लावलेला गिनना आ रहा है तो उसको हम कांच में वर्गीकृत करेंगे और उसका यापन करेंगे। देखिए पेशेंट रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का रहेगा या फिर ग्लाउकोमा का रहेगा। हमें जो ये पटल दिए हैं वो किस हिसाब से दिए हैं कि साध्या साध्यत्व, प्रथम और द्वितीय पटल में तिमिर, तृतीय पटल में भी तिमिर, लेकिन तृतीय पटल में जाने के बाद या फिर द्वितीय पटल में रहने के बाद अगर रंजन हुआ है दृष्टि का तो उसे हम काच कहेंगे। और लावला चार्जिंग, दृष्टि का रंजन हुआ है तो उसको हम काच कहेंगे। और उसके बाद अगर सिर्फ भास्वर स्वरूप यानी सिर्फ ब्राइट ऑब्जेक्ट दिख रहे तो हम उसको कहेंगे लिंगनाश है, वो असाध्य है। ओके, यानी मॉडर्न साइंस कोई भी ये लेके आइए, हमारे हिसाब से उसको साध्या साध्य तो हम डिसाइड करेंगे, ये हमें ध्यान में रखना है। ये देखिए वातज तिमिर में यहाँ पे लिखा है व्याविधानीच मानवा, तो व्याविधानीची टीका है वक्राणी, यानी जो भी सीधी चीज है वो तिरछी दिखने लगती है। हमें एक पता है कि आईना रहता है, तो आईना जो है, जो एक प्लेन आईना है उसमें हम ठीक देख सकते हैं। लेकिन अगर आईना जो है वो, एक मिनट सर,
Sure, sir. या गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं जस्ट एक अपडेट देना चाहता हूँ सबको कि अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस हैं, हमारा एक Q&A होने वाला है वेबिनार के बाद, तो आप चैट में वो आपकी कुछ जो भी क्वेश्चंस हैं वो डाल सकते हैं। यस सर, प्लीज कंटिन्यू सर। थैंक यू। हम थोड़ा, हाँ सर, ये थोड़ा फॉरवर्ड करेंगे। ये देखिए, ये जो ये मैकुलर एडिमा का पेशेंट था, जिसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एडिमा है, इसका, ये पेशेंट का जो है, इस पेशेंट का जो है ना, वो हेतु था स्ट्रेस का था। इसका जो एडिमा कम हो गया है, आपको बाजू की स्लाइड में दिखेगा, ये जो एडिमा कम हो गया है वो सिर्फ शिरोधारा से हुआ है। उसको बाद में रक्तमोक्षण, अपतर्पण सब बाद में किया हमने। लेकिन बताने की चीज ये है कि ये जो आंखों में बिना कुछ डाले भी अपना शरीर जो है दोषों को बैलेंस कर सकता है, सिर्फ हमें हेतुएं ठीक से देखने पड़ते हैं, हेतु ठीक से देखने पड़ते हैं। ये थोड़ा सा केस स्टडी हम आगे लेंगे। ये देखिए, ये पेशेंट है, 20 इयर्स की फीमेल है, उसको डायग्नोसिस वो करके आ गई स्टारगर्ट डिसीज। तो स्टारगर्ट डिसीज जो है वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसमें मैकुला के जो सेल्स है वो डिस्ट्रॉफी उसकी हो जाती है। तो उसकी डिस्ट्रॉफी जब हो रही है, तो उसे हम किस तरह से देखेंगे? तो हमें कुछ नहीं करना है, बाजू में रखना है और पेशेंट को ऑब्जर्व करना है। तो पेशेंट को ये था मध्यस्थेन न पश्यति, समीपस्थेन न पश्यति। तो उसको हमने तृतीय पटलगत तिमिर अरागयुक्त ऐसा निदान किया। नियर विजन उसका N36 था, मतलब जो भी हम लाइन पढ़ने दे रहे हैं वो 7 लाइन रहती है, बड़ी से लेकर छोटी तक। तो 2 नंबर की लाइन उसको पढ़नी आती थी, और दूर का नंबर -5 था। तो उसको विद्ध कर्म, विरेचन, मधुरगण सिद्ध क्षीरपाक, उसकी धारा, मृद्विका सिद्ध घृत का नस्य, जीवनीय गण सिद्ध घृत का तर्पण, ऐसे कुछ चीज की। अभ्यंतर पीसीओडी से लेकर मलावष्टम्भ तक सब कुछ उसका ट्रीट करना पड़ा हमें। और 10 मंथ्स के ट्रीटमेंट में उसका जो N36 विजन था, नजदीक का उसका नहीं दिख रहा था, वो टोटली अचीव हो गया N6 तक। यानी पूरा बारीक में से बारीक भी वो पढ़ रही है। और -5 का जो नंबर था वो थोड़ा बहुत कम हो गया, -4.5। तो वो हमारा ज्यादा कंसर्न नहीं था। लेकिन उसके बाद उसको बताया गया था कि आप एक 2-3 साल में अंधे होने वाले हो। तो आज 2026 है, वो पेशेंट अभी तक अंधी नहीं हुई है। हाँ, उसको यापन करना पड़ता है, अराग युक्त तो हमने लिखा है, लेकिन जैसे ही ट्रीटमेंट बंद करते हैं तो उसके 2-3 लाइन कम होते हैं। तो वो रेगुलरली अंजन, रेगुलरली तर्पण, रेगुलरली विरेचन उसको करना पड़ता है, तभी उसका काम चलता है। तो स्टारगर्ट डिसीज भी रहेगा, उसके बारे में हम एज अ शाला की, एज अ एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट करके उसका भी हम पूरा डिकोड कर सकते हैं कि डिस्ट्रॉफी मतलब क्या, वो तृतीय पटल में जाने से पहले क्या किस सीक्वेंसेस होते हैं। लेकिन एज अ, अगर हमने शालाक्य का ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, ऑप्थेल्मोलॉजी पढ़ा नहीं है, तो आयुर्वेद तो पढ़ा है। तो आयुर्वेद में क्या है, जो मध्यस्थेन न पश्यति, ये तृतीय पटलगत तिमिर, तृतीय पटलगत का पूरा प्रोटोकॉल तो मैं दे सकता हूँ इस तरह से। अभी ये पेशेंट है, डायबिटीज की वजह से उसको 4 बार लेजर और 4 बार इंजेक्शन लेने पड़ रहे थे। और हमारे पास आए तो उसको 2 फीट काउंटिंग फिंगर विजन थी। उसका हमने रक्तमोक्षण किया, वही प्रोटोकॉल है, रक्तमोक्षण किया, विरेचन किया, हिस्ट्री ले ली, अभ्यंतर मेडिसिन दे दी, तो उसको 6/12 तक विजन आ गई। उसके बाद उसको लेजर और इंजेक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर वीडियोस अगर उसमें प्ले होते, आपको सुनाई देने का थोड़ा प्रॉब्लम है। हमारे पास अभी एक रिसेंट केस है, वो पेशेंट को टोटल 50 इंट्राविट्रियल इंजेक्शन लिए गए थे और 20 टाइम्स लेजर किया गया था। 50 इंजेक्शन लेने के लिए उसने 3 साल तक उसी में वो पड़ा रहा। 3 साल तक वो हर 2 महीने में इंजेक्शन ले रहे, दोनों आंखों में मिलके 50 टाइम्स इंट्राविट्रियल इंजेक्शन। इतना रिकरेंस डायबिटिक रेटिनोपैथी में रहता है। फिर उस पेशेंट की हमने डिटेल हिस्ट्री ली, उसकी दिनचर्या ठीक की,
उसका जो भी हम प्रमेह में बताते हैं, डायबिटीज में बताते हैं, वो सब खाना पीना ठीक किया। फिर उसमें रक्तमोक्षण, विरेचन, तर्पण, ये सब चीजें की। उसके लिए कुछ अलग चीजें नहीं, जो वाग्भट आप निकाल के देखेंगे वही योग इस्तेमाल किए हुए हैं जो सुश्रुत और वाग्भट ने कहा है। मैं बताता हूँ 2 मिनट में। तो उसके बाद 3 साल तक उसको एक बार भी इंजेक्शन और लेजर नहीं लेना पड़ा। और वो जो डिसीजन है वो टोटली विट्रोरेटिनल जो भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है उन्होंने लिए थे, क्योंकि उनके पास फॉलोअप हमने कंटिन्यू रखने के लिए कहा था। जैसे आयुर्वेद ट्रीटमेंट शुरू की, उसके बाद एक इंजेक्शन लिया, उसके बाद हर 2 महीने रेगुलर उनका फॉलोअप शुरू रखा था, और 3 साल तक एक बार भी इंजेक्शन नहीं दिया। उसके बाद हम उन्होंने हमें एक टेस्टिमोनियल दिया है कि अभी मुझे वो जो शॉक था वो उससे मैं बाहर आ गया कि मुझे अभी इंजेक्शन और लेजर नहीं लेना पड़ रहा है। तो क्या है, सिर्फ इंजेक्शन और लेजर लेने से ट्रीटमेंट नहीं होती, उससे सिर्फ आ, मलम पट्टी के तात्पुरती मलम पट्टी कहते हैं वही होता है। आयुर्वेद ही ऐसी चीज है वो उनको ठीक कर सकती है, क्योंकि हमारे पास ये दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न, निदान, दिनचर्या, हेतु, ये ऐसी चीजें, उनका अग्नि ठीक करना, ये चीजें हैं। ये थोड़े से 2-3 सक्सेस स्टोरीज है। ये जो पहली पेशेंट है विमल चौहान, ये थोड़ा सा मैं इससे कंपेयर करूंगा। ये जो पेशेंट था सेम उनके जैसा डायबिटिक रेटिनोपैथी का पेशेंट, 2 पेशेंट एक ही टाइम पे आए। ये जो आपके सामने स्लाइड है, ये जो पेशेंट है वो आर्मी रिटायर था, जो सियाचिन में वगैरह ट्रीटमेंट पोस्टिंग थी उनकी। उसके बाद वो वॉचमैन था, यानी वो जागरण कर रहा था, उसका हेतु जागरण था। और ये जो पेशेंट मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको बताने के लिए लिखे, विमल चौहान, सेम डे आ गई, सेम था, सेम उनका लेजर हो गया था, सेम डायबिटिक रेटिनोपैथी, लेकिन ये सिविल के हेड नर्स थे। और उनकी आदत थी कि रोज उनको दही खाने की आदत थी। तो इनका अभिसंध का हेतु है दही खाना, और ये संतर्पित ऐसा है, और दूसरा अपतर्पित है। पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी के ही, लेकिन उनके हेतु बदल गए तो ट्रीटमेंट बदल गई। ये जो पेशेंट है जो पहली नंबर की 2017 में हमारे पास आई, आज 2026 चल रहा है, उसके बाद उनके आंखों में 3 बार ब्लीडिंग हुआ है। तीनों बार अलग अलग हेतुएं हैं, और तीनों बार मॉडर्न साइंस में सिर्फ लेजर और इंजेक्शन किया हुआ है, क्या करने के लिए सजेस्ट किया जा सकता था। वो पेशेंट ने मुझे पहले बताया मेरे एक आंख चली गई है, मुझे अभी मॉडर्न साइंस के पास जाना नहीं, जो भी करना है आप ही कीजिए, क्योंकि पहला उनका ब्लीडिंग हमने मैनेज किया। उसके बाद 3 बार जो वेट्रोरेटिनल ब्लीडिंग हो गया उनका, उसके बाद आज भी नजर उनकी 6/9 है, मतलब 7 में से 6 लाइन वो ठीक से पढ़ती है। तो हमने 9 साल से बिना इंजेक्शन, बिना लेजर से उनको रखा हुआ है। इसको हम यापन कहते हैं। फिर भी पेशेंट हर टाइम कुछ नया हेतु करके आता है। तो आयुर्वेद में वही है कि हम पेशेंट को एजुकेट करते रहे, उनके साथ बंधते रहे, तो आगे आगे जाके हम अ, उनको आयुर्वेद ठीक तरह से दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक मैजिकल अंजन है, वो अंजन किया और उनको दृष्टि ठीक हो गया और बाद में फिर कभी नहीं होगा, ऐसा होगा नहीं। पेशेंट टर्शरी लेवल के रहते हैं। दूसरा पेशेंट जो विजय गुजर नाम लिखे हुए हैं, ये नाम थोड़े से बदल दिए हैं, क्योंकि आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी इसलिए। ये पेशेंट सेम डायबिटिक रेटिनोपैथी का, एक आंख चली गई लेजर इंजेक्शन करते करते, फिर दूसरी आंख के लिए मैंने उसने कहा कि मैं मॉडर्न साइंस नहीं जाऊंगा, आयुर्वेद के लिए आऊंगा। ये 1.5 साल हो गया उनको, उसके उसमें 2 बार ब्लीडिंग हो गया है। आज खुद से ड्राइव करते हैं। इनका जो कारण था वो स्ट्रेस था। देखिए 3 पेशेंट है, तीनों का अलग अलग काम है। ये पूरा अपना जॉब प्रोफाइल शिफ्ट करके साथ पुणे से सातारा में शिफ्ट हो गए, यहाँ पे खेती वगैरह का कुछ देखे, लेकिन स्ट्रेस नहीं लेते। स्ट्रेस से शिफ्ट करने के बाद उनकी विजन इंप्रूव होती गई। उसके नीचे जो थर्ड पेशेंट है, उनका अलग स्टोरी है। उनको 5 इंजेक्शन लेने के लिए कहा था। एक इंजेक्शन देने के बाद कुछ ऐसे एक वैद्यों के संपर्क में आ गए, वो वैद्य ने कहा कि इंजेक्शन थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए आयुर्वेद ले सकते हो, तो मेरे पास भेज दिया। उनके हमने हिस्ट्री ले ली, उनका भी बहुत दिनचर्या ऊपर नीचे थी, सिर्फ दिनचर्या ठीक कर दी, थोड़ा बहुत शुद्धि, थोड़ा बहुत अब इंटरनल मेडिसिन, कुछ अलग मेडिसिन नहीं है। मैं मेडिसिन पे बता रहा कि हर पेशेंट में अलग मेडिसिन दिया है। महायोगराज गुगुल से लेकर त्रिफला तक, सफल तक, लघुमालिनी वसंत, सोरने वाली वसंत, जो उनके, क्योंकि वो एक केस मतलब एक लेक्चर रहेगा। तो उनका 5 इंजेक्शन उनको देने के लिए गए थे, एक इंजेक्शन देने के बाद 1.5 साल हो गया, फिर उनको कभी भी इंजेक्शन लेना नहीं पड़ा। उसके नीचे भी वही है। एंट्रोपियन का अग्निकर्म मैं आपको दिखाता हूँ, एक 3-4 केसेस, ये यही चीज है।
थोड़ा सा एक म्यूकोरमाइकोसिस की चीज केस बताता हूँ, ये थोड़ा अलग है। ये पेशेंट को दिखना बंद हो गया, फिर उसका उस टाइम कोविड चल रहा था, तो कोविड में बेड्स नहीं मिल रहे थे। तो उस टाइम उसका पीएनएस कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद मैक्सिलरी रिथमोइड साइनसिस कहा, और उनको म्यूकोरमाइकोसिस सस्पेक्ट करके ये भेज दिया। उसको दिखना ही बंद हो गया और आंख सूज गई। तो बारामती से वो उठ के बीजे में गया, बीजे हॉस्पिटल ससुन में। तो वहां पे उसको बेड नहीं मिला, कोई ले नहीं रहा है। तब तक दो लोग बारामती से सातारा में आए कि उनको कुछ आयुर्वेद देना है, किसी ने बताया कि म्यूकोरमाइकोसिस की ट्रीटमेंट हो रही है। तो उनको हमने त्रिफला क्वाथ का नेत्र धावन, आगे मैं बताता हूँ क्या क्या चीजें दी है। ऐसे 4-5 चीजें दे दी, काची अपन जो अंजन है वो दे दिया, बिड़ालक दे दिया कि उसको उनको लेप लगाओ। ये पेशेंट क्या था, बीजे से फिर सुसुन से फिर बारामती में गया, तो उसका बेड चला गया। वो बाहर बैठ के रात भर बिड़ालक करते रहे, रात भर उनका आश्चोतन करते रहे। सुबह हमने एक वहां पे कोविड सेंटर में एक वाइस मैडम थे जो बीएमएस थे, उनसे रक्तमोक्षण करवाया। रक्तमोक्षण करवाया और उसके बाद जो भी उन्हें ट्रीटमेंट अभ्यंतर दी, जो मैं आगे बताऊंगा, उससे तीसरे दिन उनको दिखना शुरू हो गया। तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी लगा तो हमारे हिसाब से उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता, स्टिकर हो गया। ये पेशेंट आ गया, उसी तरह से म्यूकोरमाइकोसिस, शुगर थी, कोविड होने के बाद शुगर बढ़ गई और ऐसा ऐसा हो गया। ये पेशेंट को सिर्फ मैंने उपनाह करने के लिए, इसको विद्रदी करके डायग्नोसिस किया था। उपनाह है पोटी, जो मतलब सर के स्टूडेंट ने पता होगा, पोटिस कर दिया आंखों में। शोधन योग अभी टाइम नहीं वो बताने के लिए, लेकिन अमृता कश्यप त्रिफा गुप्त दे दिया है, पथ्य दे दिया, त्रिफा अर्क डालने के लिए दिया है, कुछ अलग नहीं दिया। ये पेशेंट आए नहीं, जिन वैद्यों ने मुझे भेजा था उनका चौथे दिन फोन आ गया कि उनका क्या हो गया, तो उन्हें वो आए नहीं। उन्होंने फोन किया तो बोले उसका आंख तो मेरी ठीक हो गई। फिर वो उनको फोटो डालने के लिए बताया, तो सेल्फी निकाल के डाला है, इसलिए वो लेफ्ट आई दिख रही है। वो कोविड था इसलिए लोग ज्यादा यहाँ वहां घूमते नहीं थे। ये यहाँ पे ट्रीटमेंट, ये इंदौर में पेशेंट थी, उनको आंख निकालने के लिए कहा था। उन्होंने ट्राई लिया कि आयुर्वेद लेते हैं, ये वैद्य गौरव वर्मा है, उन्होंने कांटेक्ट किया, फोन पे ही ट्रीटमेंट ले ली। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रसमानिक, आरोग्यवर्धिनी, कृमि कीटाणु, उनके हिसाब से उन्होंने ऐड किया है। हमारे हिसाब से क्या है, रक्तमोक्षण करो, जीर्ण ज्वर करके निदान करो। ये म्यूकोरमाइकोसिस की अलग स्लाइड है, वो मैं बताता हूँ। ये आपको देख रहे हैं, शोधन योग, पथ्यादि, रक्तमोक्षण, ये सब किए हैं। लेकिन जब एम्स में चले गए बाद में, तो उनका जो आंख निकालने के लिए कहा था वो उन्होंने पोस्टपोन कर दिया, और फिर आंख निकालने की जरूरत पड़ी नहीं। तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में हम कोविड म्यूकोरमाइकोसिस को जीर्ण ज्वर कहते थे, और उसमें गुड़ुची और आहार, लघु आहार वगैरह देना और काउंसलिंग करना करते थे। और ये कल्पे ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने पड़े अवस्था के हिसाब से, बृहत्वाद चिंतामणि, वात विध्वंसन रस, एकांगवीर रस, हरयोग मतलब दातार शास्त्री जी का त्रिभुवन कीर्ति और डेरिक है, सारे वंजिष्ठा गुडुची। तो थोड़ा सा ये फास्ट हो गया, लेकिन हमें और कुछ Yes. नहीं करना Sorry, है, sir. मुझे सिर्फ मैसेज यही Yeah, लेना था इतने ज्यादा स्लाइड से। हाँ, yeah, sir. 5 minutes में अगर हम कर सकते हैं तो हो गया सर, ग्रेट हो रहेगा. गया, Yeah. ये Okay. लास्ट Thank you, sir. स्लाइड है, Sure. स्लाइड लास्ट स्लाइड। मुझे सिर्फ टेक होम मैसेज वही देना है, यही देना था कि हमें और कुछ नहीं करना है, हमें निदान आयुर्वेद का काय चिकित्सा के हिसाब से करना है। लेकिन थोड़े से शालाक्य के श्लोक भी आपने पढ़ लिए तो आपको नेत्र रोग की चिकित्सा आ जाती है। सर एक सिर्फ मैं दिखा के एक चीज दिखा के रुकना चाहूंगा। ये जो ये नई थोड़ा सा मॉडर्न साइंस का ही प्रोटोकॉल है, लेकिन आयुर्वेद में हमने मॉडिफाई किया है। जो डायक्रोसिस्टाइटिस के पेशेंट रहते हैं, प्यालस कहते हैं, उनको ऑपरेशन करने के लिए कहते हैं, डीसीआर करने के लिए कहते हैं। लेकिन उसको हम नेत्र धावन, उसको हम नेत्र बस्ती नाम दिया है हमने, कि जो सैक्रिंग करते Okay, sir. हैं, आंख में पानी डाल के नाक में आया खींचने कहते हैं, उसको हम त्रिफला क्वाथ और काशी साथी से धावन करके ठीक करते हैं। तो ये वीडियो अगर हो गया, या फिर आपको सिर्फ बता के मैं ये करना चाहूंगा। ये पेशेंट था नेजोलैक्रिमल फिस्टुला का, क्योंकि उसको डायक्रोसिस्टाइटिस हुआ था, और उसमें भी फिस्टुला हुआ था, और उसको डीसीआर करने के लिए कहा था। लेकिन सैक्स सिरिंजिंग जिस तरह से करते हैं उसी तरह से हमने त्रिफला क्वाथ और काशीसादी तेल का सैक्स सिरिंजिंग करते 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 वो व्रण पूरी तरह भराया। उसका ट्रीटमेंट व्रण की तरह या फिर विद्रती की तरह किया, ये प्ले नहीं हो रहे हैं, तो रहने दीजिए। तो व्रण की तरह या फिर हमने उसका विद्रती की तरह उसको ट्रीट किया।
तो व्रण की तरह और विद्रति की तरह ट्रीट करने के बाद और स्थानिक थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट करने के बाद ये पेशेंट का अभी 4 साल हो गए, उसको अभी बाद में DCR करने की जरूरत पड़ी नहीं। तो वही मैं बता रहा था, सिर्फ टेक होम मैसेज यही है इसका कि आंखों के लिए अलग कुछ करना नहीं है। अगर आप हो सके तो नेत्र में ज्वर से लेकर वातशोणित का निदान ढूंढने की कोशिश कीजिए। आपको कंजक्टिविटिस से लेकर रेटिनोपैथी तक सब कुछ दिखाई देगा। सिर्फ 20% जो क्रियाकल्प है उसके लिए थोड़ा सा आपको ट्रेनिंग लगेगी, वो लेने के बाद आपको नेत्र चिकित्सा आ सकती है। लेकिन फिर भी तर्पण तो आप कर ही सकते हैं, कोई भी व्यक्ति रहेगा तो। ठीक है, आपने इतना मुझे पेशेंटली सुना तो मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ा बड़ा लेक्चर हो गया, लेकिन बताना बहुत कुछ था, बहुत कुछ बताना रह गया। लेकिन एक एम लेके मैं बैठा था कि जनरल आयुर्वेद प्रैक्टिशनर को नेत्र का पेशेंट आने के बाद कुछ तो विचार करना स्टार्ट जाए, इस वो एम रख के मैं थोड़ा बताने की कोशिश किया हूँ। और आपने मुझे सुन लिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे तो वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही अच्छा ये टॉपिक आपने आज बताया है सबको। सो थैंक्स अगेन डॉक्टर संदीप फॉर दैट इंसाइटफुल एंड enriching presentation. Uh, your expertise and knowledge have helped us with a deeper understanding of this topic on clinical aspects of Netra Yoga in practice, which can be helpful to all the doctors present here. So, before we conclude, uh, I would like to open this session for questions. Please feel free to raise your hand or type your question in the chat box, and Dr. Sandeep will address them. The Q&A shall be hosted and managed by Dr. Snehil Makwana. थैंक यू आनंद। संदीप सर, बहुत ही बढ़िया लेक्चर रहा। जैसे हम कहते हैं हमेशा ही कि आई ओपनर था, ये लिटरल वर्ड में आई ओपनर था, क्योंकि आपने ऑप्थेल्मोलॉजी ही सिखाई है ना। सो बहुत अच्छा था। और जैसे आपने कहा बहुत ही इम्पोर्टेंट आज के स्टूडेंट्स के लिए कि नेत्र रोग को ढूंढना है तो सूत्रस्थान में ढूंढिए। तो मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, जब तक लोग क्वेश्चन आंसर पूछते हैं चैट बॉक्स में आप क्वेश्चन आंसर डाल सकते हैं आपके। सो मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो संदीप सर उसके आंसर दे सकते हैं। तो संदीप सर, मैं जब सर के पास था, मेरे गुरु के पास था, और सर 15 दिन की छुट्टी पे जाने वाले थे, और मैंने सर को पूछा कि सर होमवर्क दे के जाइए कुछ, मैं 3rd ईयर में था, कुछ होमवर्क मैं कर लूंगा, कुछ पढ़ लूंगा। तो सर ने बोला बताता हूँ जाने के वक्त। 2-3 दिन बाद जब सर जाने वाले थे तो सर ने मुझे कहा सूत्रस्थान पढ़ लेना। और मैंने वो 15 दिन में पूरे सूत्रस्थान, चरक का सूत्रस्थान पढ़ के पूरा नोट्स बनाया। अभी भी वो नोट्स मेरे पास है। एंड आई रियली अंडरस्टैंड कि वो एक सूत्रस्थान ही है जो पूरे ग्रंथ का बेस बन जाता है अगर हम पढ़ ले तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने छेड़ा स्टूडेंट्स के लिए कि जो हमें पढ़ना है वो सूत्रस्थान से शुरुआत करके ही आगे जाना है। और अग्नि की चिकित्सा नहीं करेंगे तो आगे कैसे होगा। और जैसे आपने कहा अंजन, तो हम हर एक पेशेंट को एवरी टाइम रोज अंजन आशोधन करने के लिए कहते हैं, और कहते हैं कि ये आपकी आंखों का ब्रशिंग है। जैसे आपने कहा, तो हम ऐसे प्रमोट करते हैं कि हम उनको कहते हैं कि जैसे हम आप ब्रश करते हो तो ये आंखों की ब्रशिंग है आपकी, जो आपको रोज करनी है। वैसे आई रिक्वेस्ट एवरीबडी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, क्वेरीज, यू कैन पुट इट इन द चैट बॉक्स और यू कैन रेज योर हैंड। हम आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन देंगे एंड आप डायरेक्टली संदीप सर को क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। डॉक्टर स्नेल, मैंने एक कमेंट देखा है डॉक्टर सतीश से कि दे आर अवेटिंग सम रिफ्रेशर ऑन आई ओपनिंग का, कुछ तो उन्होंने कुछ लिखा है। नहीं सर, आई गेस आनंद, दैट वाज कि जब सर पूछ रहे थे कि मैं कंटिन्यू करूं कि नहीं, सो ही अच्छा, ओके। डॉक्टर वाज लाइक एनकरेजिंग कि यू कंटिन्यू बिकॉज़ इट इज अ आई ओपनर। अच्छा अच्छा, ओके ओके। यस। सो संदीप सर, अभी कोई क्वेश्चन तो है नहीं, जस्ट मेरी तरफ Okay. से मैं ये इनपुट दे सकता हूँ कि जैसे आपने कहा कि स्पेसिफिकली तिमिर के पेशेंट आए तो उनको यापन के लिए हम काच यापन या जैसे हम एलानीर कुजम भी यूज करते हैं। तो जैसे हम करते हैं कि नहीं है आपको वैसे सिम्टम्स, फिर भी आप हफ्ते में एक बार एलानीर कुजम भी यूज करें या रोज त्रिफला का दावन करें। तो वैसे जो यंग डॉक्टर्स है उनके लिए कुछ, उनके पेशेंट के आई केयर के लिए, जो यंग आज की जनरेशन है जो ज्यादा स्क्रीन टाइम यूज कर रही है, ड्राई आई सिंड्रोम जैसे केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, तो उनके लिए या
जैसे आपने कहा कि आप हम जब पढ़ रहे थे तभी बच्चों का स्क्रीन टाइम नहीं था, तो आजकल तो 2-3 साल के बच्चे भी स्क्रीन टाइम हाई है। तो उनके लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे? हाँ, एक्चुअली बेसिक चीज है, अंजन ही है। बच्चों में हम जो डालते हैं उसको हम काजल कहते हैं। ये ग्रंथों में जो संधाव अंजन करके आए हैं वो सब है, यानी जैसे दिया जलाना और उसका जो ऊपर का ऑक्साइड ऑक्साइड है, उसका जो धूल है वो घृत में लगा के हम काजल लगाते हैं। वो बच्चों को 8 साल के पहले के, और 8 साल के ऊपर के लोगों को हमें सौविरांजन ही डालना चाहिए। सौविरांजन जो है ना वो श्वेत रहता है और स्त्रोतंजन है वो ब्लैक रहता है। तो सवीरम अंजनम नित्यम हितम अक्षणम, ये जिंक ऑक्साइड रहता है एक तरह का, उसको शुद्ध करके चूर्ण फॉर्म में डालना है। एक्चुअली अंजन जो है वो सुबह जो करते हैं वो चूर्ण फॉर्म में लेखन अंजन रहता है। शाम को जो करते हैं वो थोड़ा सा उसमें घृत रहता है, यानी ईशत स्नेह, वो रोपण अंजन रहता है। और रात को जो करते हैं वो प्रसादन अंजन, उसमें स्नेह संपन्न अंजन रहता है वो। तो हमें जो करना है कफ के लिए सुबह सव्वीरांजन ही करना है। तो सव्वीरांजन ही एक ऐसी चीज है जो हम रोज आंखों में डाल सकते हैं। सव्वीरांजन अगर नहीं मिला तो स्त्रोतंजन उसका प्रतिनिधि द्रव्य है। दोनों के गुण एक जैसे ही है, द्रव्य अलग अलग है लेकिन गुण एक जैसी है। तो अंजन तो सबने नित्य करना है। दूसरी बात यह है कि 5-6 दिन अगर हमने अंजन कर लिया तो एक दिन रसांजन करना है, सविरंजन और एक दिन रसांजन। यही चीज बहुत ज्यादा है। दूसरा सर्वांगाभ्यंग, पादाभ्यंग, ये चीजें आंखों को अच्छे रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी सबसे अच्छी बड़ी चीज है वो है स्ट्रेस फैक्टर। छोटे बच्चों में भी स्ट्रेस रहता है, पढ़ाई का स्ट्रेस रहता है, एक आध सब्जेक्ट समझ में नहीं आता तो उनका चश्मे का नंबर जल्दी बढ़ता है। जो यंग डॉक्टर्स है या फिर करियरिस्टिक लोग हैं, उनका ड्राई आइज रहता है, वो आंखों पे नजदीक का जितना आप देखेंगे आंखें स्ट्रेस में रहेंगी, जितना दूर का देखेंगे उतनी आंखें रिलैक्स रहती हैं। तो ज्यादा नियर वर्क की वजह से भी आंखें स्ट्रेस में आती हैं। तो इसके लिए रेगुलरली घृतपान करें, रेगुलरली अभ्यंग करें। रेगुलरली अभ्यंग नहीं हुआ तो पादाभ्यंग तो रेगुलरली होता है, और वीकली वंस सर्वांग अभ्यंग हम कर सकते हैं। और अंजन रोज करें। ये पैराग्राफ भी अगर हम आप पेशेंट को बताते रहे, समझाते रहे, स्ट्रेस फैक्टर मैनेज करते रहे, तो आंखों के जो भी डिसीज है वो बढ़ते नहीं है। मॉडर्न साइंस में ये पूरी तरह निग्लेक्टेड एरिया है जो हमारे पास है। इतना सिंपल फॉर्म है, इतनी सिंपल चीज है, लेकिन कोई भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आपको इस चीज की तरफ देखने को बताएगा ही नहीं। सिर्फ आंखों में वो इंस्ट्रूमेंट से देखेंगे और इंजेक्शन, लेजर या फिर चश्मा, इससे आगे वो बढ़ते नहीं। इसीलिए हमारे पास बहुत स्कोप है आंखों में ट्रीटमेंट करने के लिए, क्योंकि ये जो अलग चीज है वो हम सिर्फ वैद्य ही लेके बैठ सकते हैं और वैद्य ही ये चीज कर सकते हैं। कोई व्यक्ति ये चीज नहीं कर सकता। ये पेशेंट को ये बताना, ये एंगल्स उसके बताना, और जैसे पेशेंट ये फॉलो करने लगता है तो उसका जो मैंने कहा ना कि इंजेक्शन रुकने लगते हैं, चश्मे का नंबर बढ़ना रुकने लगता है, रिकरेंस कम। नया नहीं है, वही आयुर्वेद है। सिर्फ हमें समझना समझने की जरूरत है। नाना जी मुझे कहते थे, नाना जी को मैं हमेशा बताता कि ऐसा हो सकता है क्या, ऐसे कैसे होगा, वैसे कैसे होगा। तो नाना जी ने एक चीज में कहा, एक ही बात में कहा कि तुम करो। तुम करने से पहले क्यों बोल रहे हो? तुम्हें जो लग रहा है ना कि ऐसा ऐसा होता है, अभी मैं बता रहा हूँ कि ऐसा रहता है कि लाड़ प्यार से बढ़ता है, तो लाड़ प्यार कम करो, देखो कम होता है कि नहीं। तो जैसे जैसे पेशेंट आते जाएंगे तो हमें ये हेतु मिलते जाते हैं। वो हेतुओं का हम संग्रह करते रहें। ग्रंथों में भी हेतु संग्रह है बहुत सारा, वो देखते रहें। वो जैसे ही हमें पता चलेगा तो वहां पे पॉइंट नोट करो और पेशेंट को बदलो, ये क्लियर हो जाएगा। ऑप्थेल्मोलॉजी से आयुर्वेद यही डिफरेंस रखता है और वही हमें एनकेश करना है हमारे प्रैक्टिस में। सर अंजन कौन सी एज से शुरू करना चाहिए? अंजन यस सर, कौन सी एज सर, से शुरू करना? काजल तो बच्चों में भी डालते हैं, 6 महीने के बाद भी डाल सकते हैं अगर ज्यादा कुछ ये नहीं रहेगा तो। जाई काजल जो में तो जाई काजल जो यस प्रिपरेशन है वो बहुत सालों से यस चला आ रहा है। बाकी यस कुछ मैं ऐसा सजेस्ट करता हूँ, एटलीस्ट वो थोड़ा सा डाला करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आता, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ना कहेंगे। लेकिन अगर इन्फेक्टेड नहीं रहेगा, अच्छे आंखों में रहेगा। लेकिन अंजन का जो है ना वो क्राइटेरिया ये है कि खाने के बाद नहीं डालना है, भूख लगते वक्त नहीं डालना है, आंखें स्ट्रेस में रहेगी, आंखों में कुछ गया है, आपको ज्वर है, प्रतिशा है, तब अंजन नहीं करना है। आंख स्वस्थ आंखों में अंजन करने हैं। निराम दोष जब आंखों में रहेगी तब अंजन नहीं करना। पेशेंट को थोड़ा सा ये समझाना पड़ता है। पेशेंट क्या गलती करते हैं, हम कुछ अंजन दिए रहते हैं और आंखों में कुछ गया तो वो लगा लेते हैं, या फिर आंखें लाल हो गई तो अंजन लगा लेते हैं। वैसे नहीं करना है। हम अंजन का एक पेज देते हैं उसके साथ कि बहुत थके हुए हैं, रोए हुए आंखें, सोए नहीं है, तो फिर अंजन नहीं करना है। जब भी आंखें स्ट्रेस्ड है, मन स्ट्रेस्ड है, शरीर स्ट्रेस्ड है,
तो आपको अंजन नहीं करना है। फ्रेश इसलिए तो सुबह उठने के बाद दंत मंजन किया, उसके बाद अंजन किया, यानी मंजन करने के बाद अंजन, फ्रेश रहेंगे तभी अंजन डायरेक्टली करते रहो। फिर उसके बाद दिन भर में टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, ऐसा। तो अंजन करते वक्त ये चीजें ध्यान में रखना है। और बच्चों में संध्या अंजन, और 8 साल के बाद सवीरांजन आप शुरू कर सकते हैं। सवीरांजन कोई कंपनी बनाती नहीं है, रॉ मिलता है बहुत जगह पे। उसको हमें जो ग्रंथों में लिखा है उस तरह से हम शुद्धि करते हैं, त्रिफलाक्वात में दोला यंत्र में पाचन करके, महालुंग के स्वरस में उसको घोट के, फिर उसको बहुत महीन, उसकी पूरी कांति जाने तक, यानी जो चकाकी रहती है वो जाने तक उसको घोटना पड़ता है, और अच्छा पैक करके रखना पड़ता है, तो उसका हम अंजन करते हैं। ठीक, बढ़िया सर। आप डॉक्टर राठी ने जो क्वेश्चन पूछा है शायद आपने उसका बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी दिया है। और कोई क्वेश्चन तो चैट बॉक्स में नहीं है एंड इसका हैंड रेज नहीं है आनंद। आई फील वी आर ऑलरेडी ओवर टाइम, प्लस देयर आर नो मोर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स, यू कैन टेक ओवर फ्रॉम हियर। संदीप सर, इट वाज अ वेरी गुड लेक्चर, बहुत ही अच्छा था। Sure, Dr. Snell. Thank you so much for the Q&A. So thank you everybody. Yeah, I think there's just one last question from Dr. Hema. एक बार Yes. just Do you supply Soviranjan for Vaidyas for use, sir? That is यस question यस from यस, Dr. Hema. रेगुलरली, यस यस। क्योंकि वैद्य लोगों को एक्चुअली बहुत सारे तैयार नहीं करते हैं, हम वैद्यों को देते हैं। ठीक ठीक। सवीरांजन भी, स्त्रोतांजन भी, रसांजन भी, त्रिफला अर्क, दारू हरिद्र के अर्क, जो आंखों में रेगुलरली डालने के लिए। बाकी बहुत सारे वर्ती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा मैं वैद्यों को देने के पहले बताता हूँ कि कहाँ पे इस्तेमाल करनी है, कैसे नहीं करनी। जो ग्रंथों में लिखे हुए बहुत सारे अंजन और वर्ती हम तैयार करते हैं, लेकिन वैद्यों को रेगुलर हम सवीरांजन और स्त्रोतांजन तो दे सकते हैं। बाकी का थोड़ा सा डिस्कस करके एक आध पर्टिकुलर रहेगा तो वो भी अंजन देते हैं। Yes. सर जैसे आपने स्लाइड में आपका नंबर डिनोट किया था, डिस्प्ले किया था, तो वही नंबर पे कांटेक्ट करके कर सकते हैं? हाँ, वही नंबर पे कांटेक्ट करके कर सकते हैं। ठीक है सर, लास्ट एंडिंग हो रहा है, जब तक आनंद एंड कर रहे हैं तब तक आप आपका नंबर अगर चैट बॉक्स में जो जिसपे वैद्य कांटेक्ट कर सके आपको सौविरांजन के लिए स्पेसिफिकली, वो डाल देंगे तो उनको कॉपी पेस्ट करना इजी हो जाएगा। या तो सर आप वो स्लाइड आप डिस्प्ले में डाल दीजिए, वो भी चलेगा। हाँ, वही कर रहे हैं। ओके सर। यस, 9860268768। Yeah, thank you, sir. So from here we'll be closing the Q&A today. Thank you everyone for your active participation and engaging questions. We hope you find this session very valuable and informative. Once again, a very big thanks to Dr. Sandeep Jadhav for sharing his expertise with us today, and thanks to all the participants for joining us. We look forward to seeing you all in our next Gyanvardhini session on Aushadhi Nishchiti in Panchabhautik Chikitsa by Dr. Ravindra Kumar Mane, which will be done scheduled in May. We shall be sharing this update in our spam-free Gyanvardhini WhatsApp community group as well. Also, I have put the link for our spam-free Gyanvardhini WhatsApp community group in the chat box. You can use that to join the group. And also, we provide all the videos on our YouTube channel. Again, thanks to all, and we'll be closing this session now. Wish you all a wonderful evening. And yeah, sir. Thank you. Thank you.